ओके सो आज की क्लास में we'll discuss what is Active Directory. Any idea? No, I mean, it's it is similar. access management, right? Where users like roles and everything is managed in. Okay. Is it similar with in S3, which is for AWS, Sorry. or is it similar S3, which in AWS, S3 or is simple storage service in AWS. There is no relation between S3 and Azure Active Directory or Active Directory. I'm just talking about uh, normal Active Directory. What is the purpose and how you will use it? no, I don't have. Okay. समझो एक ऑफिस है right? You people are walking in Sharda Center. Somewhere in the corner room you'll see some servers. One of the server is Active Directory. Okay. Once you enter into office the first time when you log in क्या करोगे on system on करके login करोगे right, whether it is desktop or laptop. When the enterprise username and password which is being authenticated internally from here itself. That उधर हमें क्या चाहिए, एक एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर बिठाना पड़ेगा. ओके. हेलो. Yeah, yeah, yeah. ओके. एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर क्या करेगा समझो. That, Amit is logging in with his ID. He'll type the username and password. That username and password will be sent it to Active Directory server, and it will check whether the username is correct or not, and also it will check whether uh, the laptop which is being authenticated is also a part of company's laptop or not. So it will check both, and then it will allow you to log in. Okay, समझा? This is how traditional way works. Okay, now इसका क्या काम है, मैं बोला कि user authentication authorization. On coming to Azure, what is traditional AD, what is Azure AD, दोनों में क्या अंतर है? Right? Traditionality, Traditional Active Directory, as I said, if you have one office, I said one. अगर ये सर्वर डाउन हो गया, ओके, कभी कभी आप ऑफिस में जाके लॉगिन करते वक्त पासवर्ड टाइप करोगे एंड वेलकम पेज गोल गोल घूमते रहेगा 1 2 3 मिनट तक, बाद में लॉगिन होगा. हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड इन योर पास्ट एक्सपीरियंस डिले इन लॉगिन? yes. yeah, sometimes it happens. Okay, in that situation what happens, let's say for example you are logging in from Sarada Center, the local server might be down for some time, or maybe there is a network issue, or maybe the server is rebooting or something is going on, and your request will be sent it to the secondary server which is in US or somewhere in the other office or other continent, wherever. सो अगर वो आईडी पासवर्ड आप भेजोगे वो उधर जाके अथेंटिकेट होके वापस रिप्लाई आने में टाइम लगेगा, तो इसलिए आपका लॉग इन स्लो होता है कभी कभी. ओके, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी इज नॉट अ सिंगल सर्वर. you'll have multiple servers in your organization that serves active directory functionality. Okay, if you want to look at more, okay, you'll have to go to command prompt. What is your domain name? What is your domain name in your office? Which, sorry? Techmahindra.com, right? The one. No, 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 no. I mean, techmahindra.com slash you log in like that every day. Yeah, I mean att slash my user ID and att.com. password. See, if I say att.com, I got two different servers in public.
Okay, similarly, in your internal, if you run the same command, if you are in office, it will give you 50-60 entries. That means with ATT domain, you have around 50 to 60 servers in your company running as a domain controllers. Each and every domain controller will act as a primary in their local location and secondary for other locations. समझो पुणे में जो है शारदा सेंटर में या हिंजेवाड़ी में वो जो डोमेन कंट्रोलर रहेगा वो ये लोकेशन के लिए प्राइमरी, राइट. सेम इफ यू हैव अ ऑफिस इन टेक महिंद्रा ऑफिस इन बैंगलोर, बैंगलोर वाले के लिए ये सेकेंडरी है, उनके लिए उधर लोकल रहेगा. उधर से अगर सर्वर बंद हो गया तो उनका रिक्वेस्ट यहाँ पे आके ऑथेंटिकेट होके जाता है. दैट इज इट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी फॉर अदर लोकेशन एंड सो ऑन. यू कैन कंबाइन ऑल द लोकेशंस अक्रॉस द ग्लोब. कोई भी डोमेन हो, that will be a techmahindra.com or att.com. Okay, each company has their own domains and their own domain controllers to manage those domains. Okay, so in short, what we need, if you want to learn Active Directory, first thing, need a domain for any organization, right? Secondly, so first of all हमें एक डोमेन चाहिए. I'll say ये यूज करेंगे, बार बार हमने टेस्ट किया था ना, यही यूज करके हमें एक्टिव डायरेक्टरी भी बिल्ड करेंगे. क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट Azure Active Directory. Now my question is, can you tell me the difference between infrastructure as a service and platform as a service? अभी तक हमने कितने क्लासेस, अराउंड 20 क्लास खत्म किया. Yeah. hmm? Yeah. So just give me one difference between infrastructure as a service and In infrastructure as a service, the infrastructure till server level is provided by the yes, provider. yes. In So platform as a service, whole package will be given. Like you don't have to do anything. okay, Just we need to install the application. ओके. सो इस केस में लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे मेरा एम क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी बिल्ड करनी है. एक्टिव डायरेक्टरी किस लिए बिल्ड करना है आपको पता है. ओके, जस्ट टू रन द ऑर्गेनाइजेशन इन अ मोर सिक्योर एंड organized way, provide authentication, authorization, security and integrity between each and every user across the globe within a company, right? So there are two ways to implement Azure Active Directory. One is infrastructure as a service in Azure I'm talking about. Another one is platform as a service. Okay, नॉर्मली कैसे रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस को थोड़ा साइड में पार्क करेंगे. नॉर्मल सिनेरियो में कैसे रहता है, यू हैव ऑफिस इन यूएस, ऑफिस इन इंडिया, ऑफिस इन यूके, ऑफिस इन सिंगापुर, ऑफिस इन ऑस्ट्रेलिया, यूके, इंडिया, सिंगापुर. समझो एक एक ऑफिस में एक एक डोमेन कंट्रोलर बिठाया. दैट मीन्स अराउंड 5 डोमेन कंट्रोलर है, या एक एक जगह पे दो है रिडंडेंसी के लिए. सो 10 डोमेन कंट्रोलर बिठा है, 10 सर्वर्स. दैट मे बी अ फिजिकल सर्वर और मे बी अ वर्चुअल सर्वर, डजंट मैटर. सर्वर मीन्स सर्वर, आई नीड अ विंडोज सर्वर्स टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी. ओके, ये सारे के सारे व्हाट डोमेन्स को मैं किस पे कन्फिगर करता हूँ, ओके समझो ये है मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम. सो इफ समवन इज ट्राइंग टू एक्सेस हियर, लेट्स से इधर कोई एक्सेस करने के लिए कोशिश करता है, अमित @ ये रहा अमित का ईमेल आईडी. और अमित अगर लॉगिन करना है, समझो कैसे लॉगिन करेगा, /Amit. ओके,
अगर सेम इफ अमित वांट टू एक्सेस मेल बॉक्स, आउटलुक में जाके ये आईडी के थ्रू मेल बॉक्स ओपन करेगा। सिस्टम में लॉगिन करना है तो ये, सर्वर में लॉगिन करना है तो ये, वीपीएन में लॉगिन करना है तो ये, राइट? दिस इज हाउ इट वर्क्स। एग्री? That's correct. Yeah. Okay, now I want to use same thing in Azure as well। सेम चीज मुझे एज्योर में भी इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि आई शुड नॉट सी एनी डिफरेंस बिटवीन माई ऑफिसेस एज वेल एज एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑफिसेस इन द सेंस दिस माइट बी अ डेटा सेंटर, दिस माइट बी अ ऑफिस, दिस माइट बी अ रिमोट ऑफिस, दिस माइट बी अ डीआर डेटा सेंटर, एनीथिंग, राइट? और वापस अभी तक हमने नेटवर्क क्लासेस में क्या क्या सीखे? दे ऑल आर कनेक्टेड इन अ प्राइवेट नेटवर्क लाइक दिस, एवरीथिंग इन अ प्राइवेट नेटवर्क। मतलब ये एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर समझो, इसका 10.1 है आईपी, इसका 2 है, इसका 3 है, इस साइट का 4 है, इस साइट का 5 है, इसका 100 10.100 से एज्योर में दिया हूँ मैंने, बाकी सब रिजर्व करके रखा है मेरे लिए कुछ फ्यूचर यूसेज। सो 10.100 से सब एज्योर में रहेगा। तो ये मेरा डिज़ाइन है नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक्टिव डायरेक्टरी 10.1 इधर एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर रहेगा, उसका आईपी रहेगा 10.1.60.99 समझो, इसका 2.1.88 एंड सो ऑन। कोई तो रैंडमली आईपीस रहेगा ना। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके एनएस लुकअप ऐसे दे देंगे, देन इफ आई हैव अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगर्ड, नीचे मुझे 1 2 3 4 5 अगर इसमें भी एक वीएम बिल्ड किया हो, दैट ऑल्सो एक्टिंग एज ए डोमेन कंट्रोलर, देन 10 यहाँ पे 12 डोमेन कंट्रोलर रहेगा। यहाँ पे क्या दिखेगा मुझे आउटपुट में, नीचे 12 एंट्री मिलेगा। ओके, सो अगर एज्योर में क्या, एज्योर में क्यों है ये दोनों एज्योर में क्यों? एज्योर में समझो कुछ 500 सर्वर है, राइट? 500 सर्वर है एज्योर में। फ्रॉम इंडिया यू आर ट्राइंग टू आरडीपी इनटू दिस मशीन। अगर ये सर्वर पे तुम लॉगिन कर रहे हो तो यूजर नेम पासवर्ड दोगे, तो ये सर्वर क्या करेगा, अब जो यूजर नेम पासवर्ड टाइप किया ये इसको भेजेगा, भाई तू चेक कर ले बराबर है क्या नहीं यूजर नेम एंड पासवर्ड। इफ दिस सेड ओके, देन यू लॉग इन टू दिस सर्वर। इसके लिए यहाँ पे भी एक या दो, डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड्स, यू कैन हैव मल्टीपल डोमेन्स, sorry, domain controllers. This concept is clear? Uh, so domain controller means, yeah, can you just Domain controller, I'll show you. I'll build the lab and I'll show you how we can use the domain controller, how we can configure, how we integrate, how you manage. Okay? But फिलहाल ये समझो कि डोमेन कंट्रोलर एक सर्वर है जिसपे एक्टिव डायरेक्टरी का सर्विसेज चलते रहेगा, विच विल बी यूज टू मैनेज योर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशंस इन ईच लोकेशन इंडिविजुअली। तो सपोज तो मैंने अभी लॉग इन किया, ओके, इन एजर जो आपने 500 एंड जो एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर का दिया है, तो इसमें जो 500 वाला ये डोमेन कंट्रोलर रहेगा, और इन बिटवीन व्हाट 500 व्हाट 500 नहीं, आपने कुछ 500 लिखे है, राइट? वो एजर के जो आई सेड 500 सर्वर है एज्योर में, 500 सर्वर है, ओके, 500 सर्वर, वन ऑफ द सर्वर। हाँ, मैंने अभी मेरा रिक्वेस्ट वहां पे गया, हाँ, ओके, हाँ, वहां से फिर एक्टिव डायरेक्टरी को गया, भाई नहीं नहीं नहीं, वो 500 सर्वर में से कोई तो एक सर्वर है इंडिया में बैठ के आप लॉग इन कर रहे हो, राइट? एंटर, व्हेन यू से एंटर इट विल आस्क फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब तब क्या दोगे आप? ये यूजर नेम दोगे और जो पासवर्ड है आपका पासवर्ड दोगे। ये दोनों इधर भी है डोमेन कंट्रोलर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट ये सर्वर यहाँ पे एश्योर में, इसका नियरेस्ट कौन सा है? ये इसके पास जाएगा रिक्वेस्ट इसके पास जाएगा और बोलेगा भाई ये अमित का यूजर नेम पासवर्ड बराबर है क्या नहीं, चेक करो। देन एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर विल से यस ही इज
his account is active, his password is right, and he has the rights to log in into this server. And if the Active Directory says okay, then you will be able to log in into this server. Otherwise, it will simply say wrong password, user ID or password is wrong, or user doesn't have a permission. कोई तो एरर आएगा. तो मेरा जो रिक्वेस्ट फास्ट रिक्वेस्ट जो जाता है, ओके, वन ऑफ द That 500 depends. सर्वर. No. That depends how you configure it. Don't go in detail in the granular level. It is high level view what I am saying. ओके वो रिक्वेस्ट मुझे कहाँ कौन सी रिक्वेस्ट किधर भेजना है, देन आई विल डिसाइड व्हेन आई एम डिप्लॉइंग द सर्वर. ओके इसके लिए वेट फॉर 15 मिनट्स, आई विल शो यू व्हेन दैट पॉइंट अराइजेस. ओके आपका डाउट समझा. ओके इधर सर्वर है, इसके पास क्यों भेजना है, यहाँ पे है ना, इधर भी ऑथेंटिकेट कर सकता है ना. दैट इज व्हाट योर इंटेंशन, राइट? या यही है ना आपका क्वेश्चन? हाँ मतलब Yeah, okay, that will cover when we are doing the lab setup. Just understand the concept how it works. हाई लेवल ओवरव्यू में ये कैसे मैनेज होगा इतना ही समझो. ओके लो लेवल में वापस हम डिस्कस करेंगे ये कैसे काम कर रहे हैं. ओके नाउ दिस ऑल कम्स अंडर इन. ओके ये सब ट्रेडिशनल है. 1 2 3 4 5 ये सारे 5 लोकेशंस कम्स अंडर ऑन प्रीमाइस बोलते हैं इनको, राइट? एग्री? 1 2 3 4 5. और एज्योर के अंदर ये 500 सर्वर, ये जो भी एडी सर्वर्स 2 बोल रहा हूँ या कुछ और सर्वर्स है इधर उधर एज्योर में, 2 सर्वर्स यू कॉल इट एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कंपोनेंट्स. ओके एवरीथिंग इज क्लियर यहाँ तक? This you call it as infrastructure as a service components. All these things you'll say on premise. उसको कैसे इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, वो सब दूर की बात है. You understand the difference between these two? Now within Azure, if I log into Azure, left side में Azure Active Directory करके एक है, राइट? ये देखो यहाँ पे, राइट? Overview. Let's see. Azure Active Directory is defaultly provided component by Microsoft. बस ज़्यादा मत अंदर जाओ. क्या बोल रहा है? What is Azure Active Directory? Is cloud-based identity and access management service which help you to employ sign in and access the resources. समझा? लॉगिन करके चेक करना है, हाँ बराबर है, यूज़र ऑथेंटिकेशन होगा, लॉगिन करेगा और कुछ एक्सेस है तो एक्सेस करेगा, एक्सेस नहीं है तो देन यू विल गेट एन एरर, यू डोंट हैव परमिशन. राइट? इसका क्या काम है? सेम थिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग. इधर जो काम चल रहा है ये एक्टिव डायरेक्टरी, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी भी वही काम करेगा. There's nothing new in it, but this is defaultly provided by Azure, and this component you call it as platform as a service. प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या है? सब कुछ रेडी रहेगा, सब कुछ रेडी रहेगा. यू जस्ट हैव टू यूज इट, दैट्स इट. ना सर्वर बिल्ड करने की जरूरत नहीं, ना एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज बिल्ड करने की जरूरत नहीं, इंस्टॉल करने का और लाइसेंसेस डालने की जरूरत नहीं है, एंड यूजर्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है मैन्युअली और ऑटोमेटेडली. ये सब चीज़ें मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है. यू हैव एवरीथिंग रेडी. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या है? यू हैव एवरीथिंग रेडी, यू जस्ट क्रिएट अ यूजर एंड गिव अ परमिशन. जस्ट क्रिएट अ यूजर, गिव परमिशन. ये सब कहाँ से मैनेज होगा? आपको कुछ लेना देना नहीं, एज्योर देख लेगा खुद ही, राइट? रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन this setup and this component. This component is only this component I'm talking about. Okay, ऊपर जाके यहाँ पे सर्वर बनाएंगे, उस सर्वर पे लॉगिन करके एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे, यूज करेंगे. दैट इज एंटायरली डिफरेंट. एंड ये जो कंपोनेंट है, दिस इज एंटायरली डिफरेंट. कंसिडर दिस एज ब्लाइंडली प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है सिनेरियो एंटरप्राइज लेवल का,
स्टार्टअप कंपनी में क्या है भाई, कुछ नहीं है, 20 लोगों का है, एक घर में ऑफिस चालू किया, उनको बोला कि ना डेटा सेंटर नहीं है, ना ऑन प्रीमाइज, ना एज्योर, ना क्लाउड, ये सब बंद कर दो, कुछ नहीं। एज्योर में कुछ सर्वर्स डिप्लॉय करेंगे एंड हमारा बिजनेस चलाएंगे। इस केस में 20 एम्प्लॉई है, राइट, 20 एम्प्लॉई, ऑल आर डेवलपर्स। 20 लोग सुबह आएंगे, लैपटॉप लेके काम करेंगे, शाम को जाएंगे, यही कॉन्सेप्ट है शॉर्ट स्टार्टअप में है। इमेजिन उनको इतना ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, सिंगल साइन ऑन, मेल बॉक्स वगैरह वगैरह जरूरत है क्या? नहीं ना। सिंपली व्हाट दे नीड, हाँ ये बंदा ये काम करेगा, इसको ये परमिशन चाहिए, देन व्हाट आई विल डू, आई सिंपली लॉग इन टू अज्योर पोर्टल, आई एम द ओनर ऑफ द पोर्टल, राइट। 20 लोगों का यहाँ पे 20 आईडी बनाऊंगा और 20 पासवर्ड सेट करके उन सबको मेल डाल देता हूँ, भाई ये तुम्हारा एजूर का पोर्टल है, इसमें लॉगिन करो, दिस इज योर आईडी, दिस इज योर पासवर्ड। उसमें मैं राइट परमिशन सेट करता हूँ, हाँ एक दो टेस्टर है, दो डेवलपर्स है और 2 लोग मॉनिटरिंग टीम वाले, फलाना segregation. Then once they log in into the portal, they can only see what I have assigned. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Yeah. That's it. I mean, yeah. ओके, सो दिस इज स्टार्टअप। इनके लिए अभी तक मैंने जो डिस्कस किया था, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में ऑन प्रीमाइज में एक सर्वर बिठाएंगे, एक एक कंट्री में या एक एक लोकेशन में एक सर्वर बिठाएंगे, एज्योर में भी कुछ 500 सर्वर है, उधर भी एक एक्टिव डायरेक्टरी बिठाएंगे, इतना सारा इंफ्रा इनको जरूरत है क्या? नहीं ना। दे रियली डोंट बोदर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, दे सिंपली वांट एज्योर, जितना कम कॉस्ट में हो सके उतना कम कॉस्ट में उनका बिजनेस चलाना है। उस केस में एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी जो कंपोनेंट है यहाँ पे, दिस विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट एज ऑफ नाउ। अगर आप प्रीमियम अकाउंट नहीं लोगे, मतलब प्रीमियम सर्विस नहीं लोगे, देन विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे जाओ, क्लिक करो, ओके, दिस इज योर एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, यूजर्स ग्रुप्स, ओके। 1 सेकेंड बालाजी, कोई साउंड किचवा, यूजर्स एंड ग्रुप्स, यहाँ पे जाओ सिंपली, और कुछ यूजर्स रहेगा, इग्नोर दीज यूजर्स, पुराना क्लास में जिसको क्लास लिया था उनका है, ठीक है। न्यू यूजर, सिंपली आई से क्रिएट यूजर, जो भी डिटेल से फिल करके एस क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे पासवर्ड भी रहेगा कहीं, तो देखिए कहाँ पे Identity. नहीं नहीं नहीं, आइडेंटिटी नहीं, एक मिनट है, हाँ ये देखो पासवर्ड अभी एनेबल हुआ, पहले नहीं था, राइट। लेट मी क्रिएट अ पासवर्ड, आई विल सेट द पासवर्ड, आई मेल इट टू समवन हु न्यूली ज्वाइंड, बोलेगा भाई ये यूजर नेम है और ये पासवर्ड है, रोज तुम आके इस पे लॉग इन करो, और व्हाट इज योर ड्यूटी, जस्ट मैनेज योर ड्यूटी। उसको बताता हूँ मैं क्या करना है भाई, आके पोर्टल में, इफ ही इज इंटेलिजेंट इनफ, इफ ही इज अ डेवलपर, ऐप सर्विस है एक, उस ऐप सर्विस में उसका जो भी कोड है वो कोड डेवलप करके टेस्ट करते बैठेगा, उसको उतना ही परमिशन दूंगा। आई डोंट रिक्वायर एनी एक्टिव डायरेक्टरी, आई डोंट रिक्वायर एनी सर्वर, आई डोंट रिक्वायर एनी नेटवर्क, आई डोंट रिक्वायर एनी फायरवॉल, नथिंग। सिंपली एक यूजर क्रिएट करेंगे और एक सर्वरलेस आर्किटेक्चर है एज्योर में, जिसपे आपका कोड आप कॉपी पेस्ट करके टेस्ट कर सकते हो दिन भर, राइट। डेवलपर्स को और क्या चाहिए? यू गॉट माई पॉइंट, राइट। सो उस केस में सिंप्लीफाई करने के लिए दिस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कंपोनेंट पिक्चर में आता है। दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी टू मैनेज, नो नीड टू वरी अबाउट मैनेजिंग द एंटिटीज और पासवर्ड्स एंड अदर स्टफ, और आपका यूजर आईडी किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं, जितने जितने यूजर है, जितना एम्प्लॉय है उतना यूजर बनाओ, यहाँ पे यूज करो, दैट्स इट, डन। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन योर ऑन प्रीमाइज एंड एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी इन स्टार्टअप सिनेरियो। स्टार्टअप का सिनेरियो में मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे यूजर बनाएंगे पोर्टल के अंदर ही और उनको मेल डालेंगे, भाई ये यूजर नेम पासवर्ड इतना ही है, बट उन लोग क्या करेगा, आई सेड मेरे पास लैपटॉप देने के लिए भी क्या बोलते हैं कॉस्टिंग नहीं है, ब्रिंग योर ओन लैपटॉप्स, उनको घर के ही लैपटॉप लेके आएंगे, उन लोग एक्सेस करेंगे, चले जाएंगे। दैट मीन्स आई डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन देयर लैपटॉप्स, उन लोग लॉग इन करेगा, मैं जो यूजर नेम पासवर्ड दिया हूँ वो यूज करके दे स्टार्ट वर्किंग एवरी डे। नो, I want to integrate these two, then there is a problem.
यहाँ पे भी एडी चाहिए, यहाँ पे भी एडी चाहिए, देन दैट इज एंटरप्राइज लेवल कॉन्फ़िगरेशन। ये स्टार्टअप वाला सिनेरियो समझ में आया आपको? Yeah. ओके इस केस में क्या करेंगे, वेरी सिंपल, मुझे यही डोमेन चाहिए। नाउ कनेक्ट विथ एज्योर, दैट इज डीएनएस जोन के साथ, जोन ए करो। थर्ड, कनेक्ट विथ एज्योर एडी, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी जो है उसके साथ कनेक्ट करो। क्रिएट यूजर्स एंड ग्रुप्स, मैनेज फॉर स्टार्टअप्स आई सेट। ये 4 स्टेप करोगे, देन योर स्टार्टअप कंपनी इज रेडी with all the user authentication and authorization. कैसे? I have a domain. Do I have a domain? Yes, I have a domain. कैसे? Let's start. I'll go to GoDaddy. Okay, so I have this. Go to DNS. ऑलरेडी डीएनएस कॉन्फ़िगर किया हुआ है, लास्ट टाइम हमने बहुत सारे टेस्टिंग और हर एक क्लास में जो भी किए, राइट। आई हैव अ डोमेन, नाउ आई वांट टू इंटीग्रेट दिस डोमेन इनटू माय Azure. So how to do that? Go to Azure. What is first step? DNS zones. Agree? डोमेन है और डीएनएस जोन क्रिएट करो। क्रिएट ए डीएनएस जोन। ओके, gunva.co.in, right? So review, create. Done. So let it create. Yes, I'll put it on mute, everyone. Okay. Okay, DNS has been created. Let me see if we have multiple resource groups. Okay, fine. So refresh, you'll see some other component. Yes, DNS zone is there. Now go to DNS zone. See what all the entries we have. 06 का आया है, राइट। यहाँ पे आके चेक करो, ये 06 है, कुछ और है 06 ही है, बराबर। सो नो नीड टू मॉडिफाई, राइट। अदरवाइज कैसे मॉडिफाई करना है आपको पता ही है, राइट। नाउ आई वांट टू यूज दिस डोमेन इन माय Azure AD। Azure AD में कनेक्ट करना है। Azure AD मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस वाला। कहाँ पे? यहाँ पे। सो जस्ट open it in new tab. Watch carefully. Okay, now यहाँ पे if you scroll down, multiple options है, we'll see some of them later. Custom domain names. Okay, custom domain names, यहाँ पे आप custom domain names दे सकते हो। मैंने दूसरा क्लास लिया तब एक custom domain दिया था। Just leave this. By default, when I register myself into Azure, you will get this as your default
प्राइमरी डोमेन मीन्स अगर यहाँ पे आप देखोगे दिस इज माई यूजर नेम ईमेल आईडी राइट, वही ईमेल आईडी क्लब हो जाएगा 197 outlook dot on microsoft.com. On microsoft.com is the domain which defaultly provided by Microsoft. आपको यहाँ पे ये यूज नहीं करना है. If you want to use it, you can use this domain by the way. कैसे? हाँ, मुझे ऐसे ही लॉगिन देना है सबको तो दे सकता हूँ. यूजर बनाओ. ओके, न्यू यूजर. यहाँ पे देखिए अमित @ ये पूरा नाम आएगा, ये है. अब अमित को लॉगिन करते वक्त कैसे देना पड़ेगा? यहाँ पे आ जाइए portal.azure.com में. जस्ट गिव मी वन मोमेंट. ये बाय डिफॉल्ट लॉगिन हो जाता है मेरे अकाउंट से. साइन इन विथ डिफरेंट अकाउंट. ये पूरा देना ऐसे देना पड़ेगा लॉगिन करते वक्त. दिस लुक्स वेरी ऑड राइट. सो इससे अच्छा कस्टम डोमेन यूज करेंगे. कस्टम डोमेन क्या था? मैंने सेलेक्ट किया कस्टम डोमेन ये. सो उसको कैसे रजिस्टर करना है दैट विल सी. सो आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी यूजर विद दिस नेम. ओके, नाउ गो टू डिफॉल्ट डायरेक्टरी. यहाँ पे कस्टम डोमेन्स, ये जो भी कस्टम डोमेन ऑलरेडी ऐड किया हुआ है इसको डिलीट कर देता हूँ. जो पुराना राइट, डिलीट. डन. ये चला गया. रिफ्रेश. has been scheduled for deletion. Okay, fine. वो डिलीट हो जाएगा, इससे कुछ लेना देना नहीं. Now I want to add my own custom domain. कैसे करना है? So gonye.co.in, right? This is the domain. Just click add domain. domain तो add हो गया. ये बोल रहा है कि to use this domain with your Azure AD, create a new text record in with your domain name registered with below info. अगर आपको ये यूज करना है, मतलब आपने दे दिया कुछ तो आंख बंद करके, बट ये जेन्युइन है या नहीं है, ये डोमेन सच में आपका है क्या नहीं, वो कैसे वैलिडेट करेंगे? मैंने ऑलरेडी उस नाम से एक डीएनएस जोन क्रिएट किया हो और डीएनएस जोन उधर पॉइंट किया भी हो. कहाँ पे? गोडैडी में. मुझे गोडैडी में ये डोमेन है मेरे नाम पे. आई एम द ऑथराइज पर्सन फॉर दिस डोमेन एंड आई हैव अपडेटेड दीज रिकॉर्ड्स, मीन्स आई एम द ओनर ऑफ दिस डोमेन. सो यहाँ पे मैंने डीएनएस रिकॉर्ड क्रिएट किया हो. ये डीएनएस रिकॉर्ड इसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्टिव डायरेक्टरी में, ताकि एडी समझेगा कि हाँ ये षटगुनिया.co.in मेरा ही है. आई कैन यूज इट नाउ. इसलिए नीचे जो है वेरीफाई करके है. Verification will not succeed until you have configured your domain with your registered at described above. ओके, पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं. कैसे करना है? गो टू डीएनएस जोन, क्रिएट अ रिकॉर्ड सेट. रिकॉर्ड सेट क्या क्रिएट करना है? यहाँ पे देखो एलियास नेम क्या था? कॉपी द एलियास नेम एंड पेस्ट द एलियास नेम हियर. ओके, व्हाट इज द टाइप? रिकॉर्ड टाइप txt. सेलेक्ट रिकॉर्ड टाइप txt. ओके, और क्या है? डेस्टिनेशन टू और पॉइंट टू एक्सेस, ये कुछ तो रैंडम नंबर दे दिया. कॉपी दिस रैंडम नंबर एंड पेस्ट इट हियर. दिस इज द वैल्यू, राइट? और टीटीएल ट्रांजैक्शन टाइम लिमिट 3600 seconds. बाय डिफॉल्ट 3600. डन. क्लिक ओके. सो यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट हो गया. मतलब now record has been created. If you click verify, this will send a request to DNS zone. This DNS zone, this record will send a request to these DNS names. These DNS names will send a request to
this, and GoDaddy will confirm yes this is the domain, it has, सच में है करके ये बताएगा. ओके, नाउ जस्ट वेरीफाई. Yes, successfully verified. Now your domain. Sorry, one second. Yeah. Once you complete this, can you show us the flow once in the diagram, like how the flow is going? Yes, 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 yes. इसलिए इसके लिए वीडियो जरूरी है और बहुत कंफ्यूजिंग है. ठीक है, I'll हाँ, explain. एक बार अगर ड्रॉ करेंगे आप तो इजी हो जाएगा वो समझने में. वेरी सिंपल. नहीं, पहले GoDaddy में डोमेन ले लो, उसके बाद DNS जोन क्रिएट करो, उसके बाद एडी के साथ कनेक्ट कर दो. एडी के साथ कनेक्ट करते वक्त क्या करना है, यहाँ पे स्टेप है वेरीफाई. वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिएट रिकॉर्ड सेट इन DNS जोन. राइट, ये DNS जोन में यहाँ पे रिकॉर्ड सेट क्रिएट किया हूँ. पहले रिकॉर्ड सेट क्रिएट करके देन क्लिक वेरीफाई ऑन एडी. समझे क्या, इतना ही स्टेप है बीच में, अगर इन डिटेल लिखना है तो. ओके, गॉट इट. सो पहले इधर लॉग इन किया हो, ये डोमेन है, ये नीचे ये कैसे देना है आपको पता है. यहाँ पे आके एज्योर में DNS जोन क्रिएट करो और जो वैल्यूज आया यहाँ पे प्लेस कर दो, डन. उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी में आ जाओ. एक्टिव डायरेक्टरी में कैसे, जस्ट क्लिक ऑन एक्टिव डायरेक्टरी, यू विल गेट दिस पेज. यहाँ पे कस्टम डोमेन्स में आ जाओ, ऐड अ कस्टम डोमेन, डोमेन का नाम दे दो, ऐड डोमेन. वो बोलेगा नीचे वेरीफाई बटन. वेरीफाई बटन से पहले वो खुद ही एक कुछ वैल्यूज देगा, वो वैल्यूज कॉपी कर ले और यहाँ पे आके record set create करो. Once record set is created, come here once again and click verify. If you click verify, then you will see your domain is verified and successfully added here. Okay, once this is added, you can make this as a primary. If you make this as a primary, ये जो default domain है ये हट जाएगा मेरा. यहाँ पे कुछ दिख रहा है ना, कुछ default करके, राइट, ये हट जाएगा. फिलहाल मेरा डिफॉल्ट कौन सा है, मैंने जब लॉगिन किया, जब मेरा आउटलुक का अकाउंट है तो ये मेरा डिफॉल्ट डोमेन है. राइट, दिस इज माय डिफॉल्ट डायरेक्टरी डोमेन. इफ आई से दिस इज माय डिफॉल्ट डोमेन, मेक एज अ प्राइमरी, यहाँ पे ये पूरा एरेज हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा इन योर रियल टाइम. समझेगा. If I place it, if I place like that, then I need to keep my DNS zone, I need to keep my GoDaddy, everything intact. Every day I'll get a bill. समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ. हर एक ट्रांसैक्शन, हर बार मैं जब लॉगिन करता हूँ तो उसका अलग से बिल आएगा, एक एक ट्रांसैक्शन का, पर मंथ 2 रुपया 3 रुपये जो भी है. बिकॉज DNS रिकॉर्ड हैज ट्रांसैक्शन लिमिट, 10,000 रिकॉर्ड्स और 10,000 ट्रांसैक्शंस पर मंथ फ्री, उसके बाद बिलिंग होगा, वैसे कुछ तो रहेगा ना उसका, तो उस बेसिस पे बिलिंग आता है. दैट्स अ सेकेंडरी पार्ट. नाउ डोमेन इज एडेड. आफ्टर द डोमेन इज एडेड, क्रिएट अ यूजर्स, मैनेज यूजर्स फॉर स्टार्टअप्स. स्टार्टअप्स के लिए क्या कर सकते हो, सिंपली कम हियर, यूजर्स, ओके, क्रिएट अ यूजर, ओके, अमित, I'll say AZ underscore Amit, because Azure के अंदर है इसलिए AZ underscore दे रहा हूं. shatgunya.co.in is Amit, लास्ट नेम जो भी है, आई डोंट, इतना मुझे पता नहीं इसलिए कुछ दे नहीं रहा हूं. लेट मी क्रिएट अ पासवर्ड. ओके, ये सब देना है तो दे दो, कौन से लोकेशन से यूज करना है, कौन सी ग्रुप में परमिशन देना है, एवरीथिंग यू कैन गिव इट. अदरवाइज सिंपली क्रिएट अ यूजर. यूजर हैज बीन क्रिएटेड. अमित, ईमेल आईडी देखिए, ये है अमित का ईमेल आईडी. ओके, इफ यू सी
all the other users दिख रहा है कि ये ignore this when we integrate our own domain again you will get some other users like this. ये आप छोड़ दो. ये जो है Microsoft account, this is my default user. When I log in with the my Gmail ID, Gmail or Outlook, when I create the Azure portal, Azure account myself, this is the default account. Now I created one manual user with my custom domain. Okay, even I can log in with this. How to log in? यहाँ पे आ जाइए, az_amit@.co.in. Right? Next. It will ask for password change. ये देखिए. Done. Now you logged into, देखिए, with this user, and if I want to see all the resources, yes, I can see the resources. Nothing. So you have to add him resource group, right? I think once you create the user, that's it. I gave a user, okay, but I haven't given any permission. That is the reason why welcome to Azure कुछ तो create करो. Okay. एक सिंपल यूजर है, लॉग इन किया, उसको कुछ परमिशन नहीं है, ही कैनॉट डू एनीथिंग एंड ही कैनॉट सी व्हाट आई हैव अनलेस अंटिल आई गिव द परमिशन. ही कैनॉट सी. ये तो बाय डिफॉल्ट दिखेगा. अगर समझो रिसोर्स ग्रुप में क्लिक करेंगे, मेरा रिसोर्स ग्रुप इसको दिखना तो चाहिए, कुछ दिख ही नहीं रहा है, बिकॉज फॉर दिस अकाउंट इट्स ब्रांड न्यू फॉर एज्योर. अजूर सोच रहा है कि ये ब्रांड न्यू अकाउंट है. लॉगिन किया, बराबर है, लॉगिन कर दिया, बट हमने यहाँ पे कुछ परमिशन ही दिया नहीं, तो कैसे होगा काम? नहीं होगा. देन व्हाट आई विल से, आई कैन गिव परमिशन एट डिफरेंट लेवल्स. आई विल गो टू रिसोर्स ग्रुप. मेरा एक रिसोर्स ग्रुप है, ये रहा. इस रिसोर्स ग्रुप में IAM में जाके add a role assignment. Yes, assign some role. To whom I need to assign, which role I should assign, I will say reader permission, only he can see AZ Amit. इसको दे दो परमिशन. Done. Assignment is successfully done. अभी वापस आ जाओ यहाँ पे, गो टू होम, यहाँ पे जाके रिसोर्स ग्रुप में जाइए. यू शुड सी सम रिसोर्स ग्रुप नाउ. स्टिल नॉट कमिंग अप. लेट मी लॉग आउट एंड वंस लॉग इन अगेन. not this account, sorry. Yes, this account, right? Password. Okay, now you'll see resource group. ये देख, अभी रिसोर्स ग्रुप दिख रहा है जब मैं परमिशन दिया था. और अगर मुझे यहाँ पे आके मेरा मेरा मेन अकाउंट है ना, इसमें देखो और बहुत सारे रिसोर्स ग्रुप है, राइट. बट अमित को मैंने एक ही दिया, तो अमित जब लॉगिन करेगा उसको एक ही दिखेगा, बाकी कुछ दिखता नहीं, नीचे क्या है ऊपर क्या है. Got it? Yes. Okay. Yes, sir. This is how, imagine this is how startups works. सिंपल, लॉगिन करो, कस्टम डोमेन लो और उसके साथ इंटीग्रेट कर दो, परमिशंस दो
or ask them to create a application or create a application or a deployment deploy करने के लिए code deploy करने के लिए app service जो भी है they can create and they can use it. Okay, now this is there is nothing to do with your on premise में अगर हमें कुछ टच किया क्या एडी वगैरह कुछ टच किया नहीं ना simply by using defaultly provided Azure Active Directory service I am talking about. Okay, just give me one moment. Someone is calling. Hello. Yes. मैं क्लास नहीं नहीं श्रीनिवास बोल रहा हूँ मैं क्लास में हूँ बाद में फ़ोन करूँ क्या मैं ठीक है ये क्लास होने के बाद मैं आपको फ़ोन करता हूँ थैंक यू या सॉरी यहाँ पे Azure Active Directory पे गया without any server, without any license, without anything, I simply created my custom domain and created some users and assigned some roles, asked them to do the job on a daily basis. This is the startup kind of setup. ये समझा या नहीं समझा? Okay, then I'll say this is this is platform as a service component. ओके यहाँ पे हमें कुछ एडी वगैरह बिल्ड किया क्या नहीं ना नहीं ओके मैं और ऑन प्रीमाइज में एक यूजर है उसका उसका इसका कुछ लेना देना है क्या नहीं ना नहीं ओके सिंपली मैनेज एवरीथिंग फ्रॉम एज्योर इटसेल्फ ओके नाउ द सेकंड पार्ट इज फिफ्थ लेट मी ओपन अप और किसी को तो आज सिखाया था और उसका पॉइंट्स अच्छा लिखा मैंने बिफोर आई फॉरगेट किसका इसमें सेव किया मैंने लेट्स सी या I did not I'll just copy this okay just for my reference rather than stressing too much okay now coming to second scenario क्या था let me open up the paint यही है ना actual scenario now what I did ये बॉर्डर वाला छोड़ दो अभी तक मैंने क्या किया था बस यही टेस्ट किया प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस इस पे षटगुण्य जो भी अकाउंट है वो इंटीग्रेट कर दिया और यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट किया और पोर्टल के अंदर ही एक्सेस दे दिया टेस्ट किया हो गया मेरा काम राइट नो दिस इज नॉट द रियल टाइम सिनेरियो व्हाट आई वांट टू डू आई वांट टू इंटीग्रेट my on-premise with this platform service as a control component मतलब in short what I will do अभी मेरा प्लेटफॉर्म एज a सर्विस वाला कंपोनेंट प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है if I want Azure sorry let me clear this off yeah इतना तो चाहिए okay I have platform as a service component in Azure what was that Azure Active Directory राइट इसके अंदर मैंने क्या किया एक कस्टम डोमेन सेटअप किया था एंड एक यूजर भी क्रिएट किया हूँ फॉरगेट अबाउट अदर यूजर्स विच आर रिफ्लेक्टिंग बिकॉज ऑफ द अदर क्लासेस मुझे डिलीट करने के लिए टाइम नहीं मिला ये सब छोड़ दो एक यूजर क्रिएट किया अमित करके राइट नाउ यहाँ पे अमित करके एक यूजर है दिस इज लोकल यूजर विद इन द पोर्टल नो व्हाट आई विल डू मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन भी है इन द सेंस एक ऑर्गेनाइजेशन भी है नथिंग टू डू विथ माई Azure Active Directory organization in the sense
समझो, ऑन प्रीमाइस भी है, एज्योर भी है. ओके, इमेजिन दिस इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. इमेजिन ये भी एज्योर में ही है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. ऑन प्रीमाइस में मेरे पास कुछ है ही नहीं. इमेजिन आई हैव समथिंग ऑन प्रीमाइस, सॉरी, प्रीमाइस पुणे. ठीक है, यहाँ पे पुणे में एक सर्वर रूम में, एक ऑफिस में एक सर्वर है, राइट. और एज्योर में भी ईस्ट यूएस में एक विनेट क्रिएट किया हूँ, एक सर्वर डिप्लॉय किया हूँ, राइट. ये दोनों को अभी तक हमारा जो क्लासेस, जितने भी क्लासेस हुए नेटवर्किंग का, राइट, नेटवर्किंग का अभी तक जितने भी क्लासेस हुए हैं, कैन वी एस्टैब्लिश साइट टू साइट VPN between these two, Pune and Azure infrastructure as a service in US? Is it possible or not? Hello? Hmm? Yes, Yeah, sir, yeah. Yes, possible. Possible? Now, Pune office में imagine 10.1.2.0.0/16 और Azure में मैंने दिया था 10.1.0.0/16. ओके, इस सर्वर को क्या IP आएगा आपको प्रेडिक्शन के हिसाब से? 10.1.1.4. एग्री और डिसएग्री? ये वीनेट है, इसके अंदर सबनेट भी रहेगा, सबनेट के अंदर वर्चुअल मशीन भी है, राइट. नाउ यहाँ पे ये भी एक सर्वर है ऑफिस में, इसका IP कुछ बल्तीच IP है, मान लो 10.2.99.167 कुछ तो. बट ये सर्वर एक दूसरे के साथ बात कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है प्राइवेट नेटवर्क में. करना पड़ेगा ना. हाँ, करना पड़ेगा. नहीं, आपका आवाज आ नहीं रहा है, कुछ तो सही से बोलो. क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क पेयरिंग. पीरिंग? अरे भाई, पीरिंग का क्या, इधर पीरिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. पीरिंग इज बिटवीन टू लोकेशंस विद इन एज्योर. आई सेड ऑन प्रीमाइस एंड एज्योर देयर शुड बी अ साइट टू ओके साइट VPN. ओके ओके, गॉट इट. ओके, ये जो एरो जो लिखा हूं, इसका मीनिंग है मेरा पुणे ऑफिस और एज्योर के बीच में VPN ऑलरेडी है. आई डोंट वांट टू रिपीट दैट अगेन. इमेजिन, प्रीवियस क्लासेस छोड़ो मत. ओके, अभी इस IP को पिंग कर सकता है कि नहीं प्राइवेट IP में ओवर द प्राइवेट नेटवर्क? इज इट पॉसिबल और नॉट? इतना ही है, यस और नो? Yeah, yeah. एग्री? Yes, yeah, it can be. Yeah, yeah. Now, if I install Windows Server 2019 here, if I install a Windows Server 2019 here, and by using these two, can I create one common domain called is it possible to install a domain controller like this? आपके प्रेडिक्शन है, आपको पता है नहीं पता है वो जज नहीं कर रहा हूं, राइट. कैन आई जॉइन टू सर्वर्स? प्रीवियस एग्जांपल में देखो, प्रीवियस एग्जांपल में हाई लेवल में मैं ये बोल रहा था, भाई ये देखो, एक एक ऑफिस में एक एक सर्वर है, सबको कॉमनली एक डोमेन में ज्वाइन करता हो. एंड आई सेड यहाँ पे आके NS लोग आप मारेंगे 10 एंट्री मिलेगा, राइट. नाउ लो लेवल में, दैट दिस इज हाई लेवल, आई सेड ज्यादा अंदर मत जाओ उस टाइम पे. अभी बताओ, इस केस में इज इट पॉसिबल टू ज्वाइन दीज टू सर्वर्स इनटू वन डोमेन? और डोमेन में कैसे ज्वाइन करना है, उसका क्या स्टेप्स है, कॉन्फ़िगर क्या करना है, कैसे करना है, वो सब बाद में देखेंगे. बट बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर,
both machines are talking to with each other over the private network, and can these two machines will be added to one domain? Is it possible? Yes or no? Yeah, Shri, yeah, we can do. Yes. So there will be only one domain controller, I think, right, in this No, scenario. no, both will act as a domain controller. Okay. Okay, okay. In this picture, this on premise treat, I'm going to previous image again. Don't confuse. Don't confuse. Previous image again. This is my Pune office. I'm sorry. I'm so sorry. Okay. This is my Pune office, I said. Right? And this is my Azure US, I said. इन दोनों को ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये दोनों को बाहर निकाल के मैंने अलग से ये पिक्चर बनाया हूँ. उतना ही है. आई होप यू गॉट दी. Yes, yes, Shri. Yeah, so we can, yeah, definitely, yeah. आई होप यू गॉट द पिक्चर नाउ. राइट. एंड ऑल्सो Yeah, दूसरे पिक्चर में मैंने क्या किया था, यहाँ पे देखिए अलग से एक कोने में, अलग से एक कोने में प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस कुछ तो इधर लिखा था. राइट. correct. It is still there in my low level design. It is still there in my low level design. If you look at, Yeah, yeah. Platform as a service, yes. okay. So इतना बड़ा इंफ्रा को मैंने छोटा करके एक सिनेरियो लिया. राइट. नाउ सॉरी, इसको कैसे कैसे ज्वाइन करना है वो सब बाद में देखते हैं. इफ दिस सिनेरियो इज ओके, देन फिलहाल मेरे पास तो करने के लिए ये सेटअप है ही नहीं. राइट. Right. ओके, बट इमेजिन वैसे रहेगा ये सेटअप. इस पार्ट इज नॉट देयर, बट इमेजिन इट इज ऑलरेडी देयर. ऐसे समझो, एक सर्वर बिल्ड करके उसमें ये डोमेन कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ मैं. एक बार डोमेन कॉन्फ़िगर हो गया, आई कैन ऐड एन नंबर ऑफ सर्वर्स इनटू दैट डोमेन. इट इज वेरी सिंपल. आई विल शो यू हाउ टू डू दैट. Okay. ओके. इसके लिए क्या स्टेप है, आई विल गिव यू द रेफरेंस वीडियो. ऑन प्रीमिस में इट्स वेरी वास्ट टॉपिक. आई कैन नॉट क्लब एवरीथिंग इनटू, आपको ओवरलोड नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. Started recording. Hello. Cloud computing. One second. यहाँ पे कहीं तो एक्टिव डायरेक्टरी करके लिखा हुआ रहेगा. या देखिए ये वीडियो है, ये देखो ये वीडियो में क्या लगता है, विंडोज हाउ टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर डोमेन कंट्रोलर एंड ऐड सर्वर्स. ओके. ये वीडियो अगर देखोगे ऑन प्रीमाइज में, मीन दिस वीडियो रिफर्स दिस पार्ट. ऑन प्रीमाइज में एक सर्वर कैसे बनाना है, उसमें डोमेन कंट्रोलर कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे कॉन्फ़िगर करना है, वो ये वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हूँ. ओके. लेट मी पेस्ट इट इन दिस डॉक्यूमेंट इटसेल्फ. Refer this to if you have any questions. Okay, ये on premise के लिए रेफर करेगा. And coming back to my picture, can I do it on Azure? मेरा हाथ में है infrastructure as a service. I can do it. Can we build this setup? Can we this configure? And can we join these two? Is it possible or not? I'm saying Yeah. ये भी Azure में, फिर भी it requires logical connectivity between both of them. and इसको क्या बोलते हैं, using some component called Azure AD Connect. Ready, correct. Okay, is a simple tool. ये यूज करके हम इस सर्वर में जो एक्टिव डायरेक्टरी चल रहा है ये, और मेरा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में डोमेन है, इसके साथ दोनों को सिंक कर सकता है. और इस एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रीमाइज में 1 लाख एम्प्लॉई है. कंपनी का स्ट्रेंथ 1 लाख. उसमें बहुत सारे यूजर्स है, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी एंड रिसेप्शनिस्ट, एवरीवन.
but to whom I should give access to Azure portal. Azure portal में किसको access देना है? I know, I'm sure. मेरे पास 10 ग्रुप है, AD ग्रुप्स, जिसपे Azure Azure admins है और DB admins है and managers है, also business owners and billing team. ऐसे कुछ अलग अलग बल्कि ग्रुप है. I need to identify out of 1 lakh how many users can get the access on my Azure Active Directory. I can control it, right? So if I connect both of them using AD sync, all the users will replicate here. यहाँ पे sync हो जाता है. Sync होने के बाद आपका मर्जी है, जिसको access देना है आप दे दो, जिसको नहीं देना है वो लॉगिन नहीं कर पाएगा. Okay. You got the scenario now? Yes. Yeah. Okay, now let's start with the system build within the infrastructure as a service. Okay, let's go to Azure and go to resource groups. VNet, virtual networks. Add VNet. मैनेजमेंट VNet. इसमें मैनेजमेंट VNet क्यों दे रहा हूँ? ये सब मैनेजमेंट सर्विस इसमें रखता हूँ, प्रोडक्शन सर्विस नहीं. मैनेजमेंट सर्विस मीन्स बैक एंड मुझे बिजनेस चलाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सर्विस इस VNet में रखता हूँ. और AD सबनेट. AD सबनेट क्यों? ये सबनेट में सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस ही रखता हूँ. You got it? What I'm saying? Right? Create. HTTPS resource group create. Now the second part of the lab, you have to create Azure VM and DNS का थोड़ा मॉडिफाई करना जरूरी है. I'll show you how to do that. उसके बाद उस सर्वर के अंदर how to install domain controller and their services, और वो domain controller services को platform as a service के साथ. Azure AD means imagine platform as a service, on-premise AD और IaaS AD server, on-premise AD हो या within the Azure IaaS infrastructure as a service through एक VM create किया, उसके अंदर AD इंस्टॉल किया. इसको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के साथ लॉजिकली कनेक्ट कैसे करना है? यूजिंग AD अकाउंट. Azure यूजिंग Azure AD कनेक्ट बोलते हैं इसको. वो कैसे करना है वो देखते हैं. उसके बाद ऑन प्रेमाइज में या इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में देयर इज नो डिफरेंस. कहीं पे भी क्रिएट कर दो और रेप्लिकेट हो जाएगा. क्रिएट यूजर्स एंड ग्रुप्स. वो यूजर्स प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में रेप्लिकेट होना चाहिए. जब रेप्लिकेट हो गया उनको परमिशन कैसे देना है वो भी देखते हैं. ओके, जस्ट रिफ्रेश. So Shri, हर एक VNet में we need to have one Active Directory server क्या और नो. एक बड़ा एक VNet है. एक VNet में 1000 सर्वर है और एक VNet है उसमें भी 1000 सर्वर है. वो 1000 सर्वर ये 1000 सर्वर बात ही नहीं कर सकता है क्योंकि पेयरिंग नहीं है. अगर पेयरिंग रहेगा पूरा पेयरिंग में एक दूसरे के साथ सब बात कर सकता है. एग्री? सो दो VNet के बीच में पेयरिंग हो गया. कहीं पे भी एक जगह पे एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर बिठाओ देन इट्स फाइन. वो सर्वर हर जगह पे एक्सेस होना चाहिए, इतना ही है. Okay, understood. So not needed to compulsory नहीं है कि हर VNet में एक Active Directory होती है. बेस्ड होना चाहिए. बेस्ड ऑन द लोड. अगर ज्यादा लोड हो रहा है, इंफ्रा बहुत बड़ा है, देन यू नीड टू हैव मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर सर्वर्स. एक सिंगल सर्वर पूरा लोड हैंडल नहीं कर पा रहा है, देन यू विल सी मल्टीपल सर्वर्स, मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर सर्वर्स.
ओके, कितने डोमेन कंट्रोल सर्वर्स है मैंने बताया था, एनएस लुकअप, वो डोमेन का नाम दे दो, वो पूरा लिस्ट बताएगा हाँ ये कंपनी में कितने डोमेन कंट्रोलर सर्वर्स चल रहा है। वो एज्योर में होने दो, वो एज्योर में होने दो, ऑन प्रीमाइज में होने दो, इंडिया में होने दो, यूएस में होने दो, कहीं पे भी होने दो, कुछ फर्क नहीं। ओके, क्योंकि एडी एडी का जो डेटाबेस है वो क्या है, जितने भी डोमेन कंट्रोलर है उन सब हर दूसरे के साथ वो डेटा एक्सचेंज करते रहते हैं। मान लो अमित इज लॉगिंग इन फ्रॉम पुणे, ओके, आज पासवर्ड एक्सपायर हो गया, ओके, और सॉरी कोई तो ज्वाइन किया क्या या कोई लेफ्ट किया, ओके, हाँ अमित का पासवर्ड आज एक्सपायर हो गया। अमित ने पासवर्ड चेंज किया, वो जाके पुणे पुणे में एक सर्वर है एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर, उसके डेटाबेस में सेव हो गया। कल सुबह अमित ट्रैवल टू बैंगलोर एंड उधर जाके लॉग इन कर रहा है, उस सर्वर पे अगर ये पासवर्ड उधर रेप्लिकेट नहीं हुआ, वहां पे पुराना ही पासवर्ड है, तो अगेन इट विल थ्रो एरर सेइंग योर पासवर्ड इज एक्सपायर्ड। वैसे तो होना नहीं चाहिए, राइट। सो कितने भी डोमेन कंट्रोलर्स हैं वो सब हर एक सेकेंड या हर एक 5 सेकेंड या 30 सेकेंड कुछ तो डिले रहेगा उसका, एग्जैक्टली मुझे इन डेप्थ ग्रैनुलर लेवल पे वो वैल्यूज याद नहीं है, टाइमिंग वगैरह, बट हर एक ट्रांसैक्शन जब भी उसका ये होता है क्या बोलते हैं पासवर्ड चेंज होता है, तो वो वैल्यू हर जितने भी डोमेन कंट्रोलर है वो यूजर का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड्स में जाके अपडेट करके रखता है। क्लियर? नाउ Yeah. let's create one more VM. Sorry, only one VM I need. Okay, under this what I will do, AD DC Active Directory Domain Controller PNQ Pune 01, बराबर ना? or else SHAD षटगुण्या ID DC PNQ Yeah. 01। Zero. ओके, कहाँ पे है? पुणे में, ऐसे नाम के वास्ते नेमिंग कन्वेंशन है, बाकी कुछ नहीं। Okay. सो 2019 बड़ा ही सर्वर रहने दो टेस्टिंग के लिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा कॉन्फ़िगर करते वक्त। 2 CPU 8 GB, 8 GB की जगह 4 CPU 4 GB भी चल जाएगा, या नहीं तो रहने दो। लीव इट, वो चल जाएगा। ये डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड विद बिफोर क्रिएटिंग द डोमेन कंट्रोलर। पहले लोकल एडमिन का तो रहेगा ना, वैसे ही ये डिफॉल्ट यूजर है। RDP फाइन, disk is fine, and management vnet AD subnet, okay, fine. Diagnostics off, review and create. Let it create. Once this is created, we'll log in inside and do some modifications and configure Active Directory, configure everything, and then connect with platform as a service. ये टेस्ट करनी है मुझे। ओके, डिप्लॉय होगा, 2-3 मिनट टाइम लगेगा। आई जस्ट पॉज दिस रिकॉर्डिंग फॉर 1 minute, आई बी बैक, आई टेक सम वाटर एंड आई बी बैक इन 1 or 2 minutes। ओके, Okay. बेटे को भी सिखा रहे हो क्या? अरे वो बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। पता चलता है। मुझे तो नहीं है। तुम अगर भूल गए तो वो बता देगा पापा यहीं पे ये कर। तो दिमाग शार्प रहता है ना।
I'm back. Let's resume. अभी तक नहीं हुआ ना, let's wait. Yeah, okay. Go to resource. Take this IP. एक बार लॉगिन कर लेते पहले. Done. एक मिनट ना, कैंसिल. लेट मी लॉग इन वंस अगेन. अब ये एक बार ध्यान देना इस पे. If it is a standalone server, you will just see the name. Once it is added to a domain or converted into a domain controller, whether it is a client or server. Client or server means you have an Active Directory domain controller. Treat that as a server. If you add your laptop to a domain controller, okay, even if you log into your laptop remotely or you log into any other server, you will see fully qualified domain name here after adding to the domain. वो देखते हैं बाद में. फिलहाल ये देखो इतना ही है. बाद में यहाँ पे .षटगुनिया.co.in वो भी आना चाहिए नेक्स्ट टाइम जब लॉगिन करेंगे. ओके, सो यहाँ पे थोड़ा ट्विकिंग करना पड़ेगा. यहाँ पे लिखा हुआ है ट्विकिंग क्या है, ये देखिए. चेंज प्राइमरी डीएनएस एंड सेकेंडरी डीएनएस. व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड आई विल टेल यू लेटर. क्रिएट वीएम, ये हो गया. वी आर डूइंग दिस स्टेप नाउ. Just wait for 1 minute. Yeah. What is the first step? Go to PowerShell. IP config/all. क्या IP आया? जो भी IP आया पहले कॉपी कर ले सब कुछ. एक नोटपैड ले लो. पेस्ट इट हियर. ये देखिए, ये रहा सर्वर का IP, सबनेट मास्क, गेटवे एंड DNS सर्वर. कुछ तो अलग ही DNS सर्वर आया, राइट? आई डोंट नो व्हाट दिस DNS इज, बट ये DNS किस लिए यूज होता है? अब बाहर से जब सर्वर एक्सेस करते हो और द इंटरनेट, ओके, पब्लिक IP के थ्रू एक्सेस होता है ना, तो ये DNS क्या करेगा? पब्लिक होस्ट नेम रिजोल्यूशन के लिए काम करता है. ओके, just to make sure this DNS works for public, not for private usage. रियल टाइम में इसका जरूरत भी नहीं है, ये आप इग्नोर कर सकते हो if you are deploying something in your real time. ओके, नाउ क्या करना है? मुझे थोड़ा ट्विकिंग करना पड़ेगा. what tweaking I'll show you. ncpa.cpl नेटवर्क सेटिंग्स में जाइए. ओके, प्रॉपर्टीज, गो टू IPv4. यहाँ पे देखिए IP सेटिंग्स कुछ नहीं है, जो भी है डायनेमिकली आया, राइट, DHCP के थ्रू. सो मुझे स्टैटिक IP सेट करनी है. सेट अ स्टैटिक IP. कौन सा IP रखेंगे? सेम IP रखेंगे, जो IP है वही रखेंगे, बट स्टैटिक वैल्यूज, इट विल नेवर चेंज. 10.1.1.4 255 255 255.0 10.1.1.1. ये देखिए क्या होता है. 1.1.4 255 255.0 सबनेट एंड डिफॉल्ट गेटवे यही है.
राइट 1। यहाँ पे प्रेफर डीएनएस अल्टरनेट डीएनएस, यहाँ पे थोड़ा नेम मेरा अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़िया, मेरा मुझे आदत हो गया प्राइमरी सेकेंडरी डीएनएस लिखना। ओके सो यहाँ पे थोड़ा ट्विकिंग करना पड़ेगा। कौन सा ट्विकिंग है? 10.1.1.4 ये क्या है? ये कौन सा आईपी है? खुद का सर्वर का ही आईपी दे रहा हूँ, बिकॉज once I convert this server as a domain controller, the same server will also act as a DNS server, इसलिए वहां खुद का ही सर्वर का आईपी रख देंगे। डीएनएस का क्या काम है? नेम रेजोल्यूशन। ओके ऑल्सो कौन सी आईपी है? दूसरा 168.63.129.16. ओके इफ आई क्लिक ओके, एक बार डिस्कनेक्ट हो जाएगा पूरा सेशन, वापस रिकनेक्ट होगा। क्लिक ओके, ये देखिए स्ट्रक हो गया। मिनिमाइज मिनिमाइज मिनिमाइज, वापस एक बार चेक करो, इट विल डिस्कनेक्ट एंड रिकनेक्ट। बस disconnected, reconnected, right? Close it. Now you will see ipconfig all once again। यहाँ पे देखो 2 एंट्री आया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे पहले डीएनएस में एक ही एंट्री था, अभी डीएनएस में 2 एंट्री आया हुआ है। बस इतना ही मॉडिफाई करना था। ओके हो गया, जस्ट क्लोज, आई डोंट रिक्वायर दिस इंफॉर्मेशन। क्लोज क्लोज। नाउ सर्वर इज रेडी फॉर डोमेन कंट्रोलर सर्विस डिप्लॉयमेंट। कैसे डिप्लॉय करना है? गो टू, ये पेज डिफॉल्टली खुलेगा, अगर नहीं है यहाँ पे आके सर्विस मैनेजर खोल लो। यहाँ पे ऐड रोल्स एंड फीचर्स, क्लिक ऑन ऐड रोल्स एंड फीचर्स। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सर्वर रोल्स में जाके सेकंड रोल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ये सेलेक्ट कर दो। दैट्स इट, वो एक ही सेलेक्ट करना है। ओके उसके साथ साथ क्या है, क्या क्या फीचर आएगा वो सब वो खुद ही डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाता है। नो नीड टू सेलेक्ट एनी एडिशनल थिंग्स। नेक्स्ट, Active Directory domain services, it is saying you can also simply connect to Active Directory. I know it works, but I will do it later. Next, yes confirm, install. So क्या कर रहा हूँ, इस सर्वर पे Active Directory का सर्विस एनेबल कर रहा हूँ। एनेबल करने के बाद उसको कन्फिगर भी करना पड़ता है, और कैसे कन्फिगर करना है वो बाद में देखते हैं। इट विल टेक, फर्स्ट ऑफ ऑल टू इंस्टॉल द सर्विस इट विल टेक अराउंड 3 to 4 minutes। गाइस समझ में आ रहा है या लिटरली बोरिंग है? नहीं समझ में आ रहा है। इसमें क्या है, नो थ्योरी, क्यों कर रहा है, क्या काम है, किस लिए, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सीधा डायरेक्ट लैब दिखा रहा हूँ ताकि एटलीस्ट हैंड्स ऑन दिखे। और कुछ इन डेप्थ आपको ये पॉइंट पे, हाँ इसका क्या मीनिंग है, क्यों कर रहे हो, वो सब चीज़ें यू कैन गूगल इट, बिकॉज इट्स वेरी बिग टॉपिक। चाहे होते 10 दिन 12 दिन भी कर सकते हैं। ट्रेडिशनल एक्टिव डायरेक्टरी ट्रेनिंग इज ऑफ 5 days, ऑफिशियल ट्रेनिंग। एक्चुअली एक्टिव टीम सेपरेट थी, मैंने देखा था। एक्चुअली दे हैव अ सेपरेट टीम फॉर एक्टिव डायरेक्टरी। इसलिए मैं अपना 2 घंटे के क्लास में ज़्यादा कुछ उगाड़ेंगे नहीं, बट एटलीस्ट इफ यू हैव सम आइडिया ऑफ हाउ इट वर्क्स, हाउ इट विल बी कंट्रोल्ड, हाउ इट विल बी मैनेज्ड इन एनी कस्टमर एनवायरनमेंट, दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट विल बी इंटीग्रेटेड विथ योर एज्योर। मेरा एम ये है कि ऑन प्रीमिस और एज्योर दोनों पे इंटीग्रेशन कैसे चलता है वही दिखाना है। ओके वो एज्योर कैसे, सॉरी एक्टिव डायरेक्टरी कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या क्या सर्विसेज है, उसके अंदर क्या क्या रोल्स है, क्या क्या स्कीमा है, और हाउ द स्कीमा विल वर्क, हाउ फेल ओवर विल हैपन, और कुछ पासवर्ड एक्सपायर हो गया, स्टेल ऑब्जेक्ट आईडीज डिलीट नहीं हो रहा है, कैसे ट्रबल शूट करेगा। आई एम नॉट गोइंग टू कवर एनी ऑफ दीज टॉपिक्स। ओके दैट्स ऑल कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। नाउ
If you see configured, installation is successful, done. ओके, यहाँ पे आ जाइए, ये देखो some warning, you have to promote this server to a domain controller, then only it will function. ओके, प्रमोट. अभी देखो क्या पूछ रहा है भाई, डोमेन कॉन्फ़िगर कर लो. एग्जिस्टिंग डोमेन नो, न्यू फॉरेस्ट एग्जिस्टिंग नहीं. सेकंड ऑप्शन यू विल यूज, सेकंड ऑप्शन व्हेन यू विल यूज. ओके वन सेकंड, कहाँ पे है ये मेरा, हाँ. अगर एक बार ये क्रिएट हो गया इस सर्वर यूज करके, ऑन प्रीमाइज में भी एक सर्वर है, इसको यही डोमेन में ज्वाइन करना है, इस सर्वर को भी इसी डोमेन में ज्वाइन करना है. देन दूसरा सर्वर ऑन प्रीमाइज में बिल्ड करो. ओके, बिल्ड करके सेलेक्ट, क्या हो गया, हाँ फर्स्ट ऑप्शन, ऐड अ न्यू डोमेन कंट्रोलर इनटू एग्जिस्टिंग डोमेन. डोमेन ऑलरेडी है, नया डोमेन कंट्रोलर बिठाना है, तब फर्स्ट ऑप्शन यूज करो. कौन सी कंडीशन में, व्हेन आई से दिस पार्ट व्हेन यू आर कॉन्फ़िगरिंग सेलेक्ट सेकंड ऑप्शन इन अदर सर्विस. बाकी स्टेप्स सेम, अभी तक जितने भी स्टेप्स करने किया हमने वो करना पड़ेगा. उसके बाद ये चीजें. वन सेकेंड, यहाँ पे एग्जिस्टिंग डोमेन में नहीं डालना है मुझे, न्यू फॉरेस्ट क्रिएट करना है. न्यू फॉरेस्ट मीन्स अभी तक है ही नहीं वैसे डोमेन मेरा ऑर्गेनाइजेशन में. HADGUNY ये .co.in, ये गूगल गोडैडी में जाके मैंने खरीदा, अभी मैं इधर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ. अगर वहाँ पे खरीदा या नहीं खरीदा ये डोमेन को कुछ रिलेशन नहीं है. यहाँ पे चाहे होते att.com भी दे दे, वो ले लेगा. बट व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग विथ एज्योर वो इंटीग्रिटी चेक करता है सच में है क्या नहीं करके. ओके, डन. नेक्स्ट, वो बताता हूँ कहाँ पे वो इंटीग्रिटी चेक होगा, वो दिखाता हूँ बाद में. अगर बाद में कभी भी एडी में कुछ प्रॉब्लम आया ट्रबल शूट करने के लिए, ये पासवर्ड है. डायरेक्टरी सर्विसेज कुछ खराब हो गया, रिस्टोर करना है तो ये पासवर्ड देना पड़ेगा. नेक्स्ट, डीएनएस डेलीगेशंस. कंपनी में 10 से ज़्यादा डोमेन कंट्रोलर रहता है करके बोला, उसमें से कोई भी एक टास्क किसी को डेलीगेट करना है. डीएनएस सर्विस एक स्पेसिफिक सर्वर को डेलीगेट कर सकते हो, हमारे पास एक ही है. आई डोंट रिक्वायर एनी डेलीगेशंस एज ऑफ नो. नेक्स्ट, that will automatically discover the NetBIOS name. आ गया. नेक्स्ट, एक्टिव डायरेक्टरी का कंपोनेंट्स, डेटाबेस, ट्रांजैक्शंस, लॉग्स, एवरीथिंग विल बी saved under this location on this server itself. Next, fine, prerequisites, let it verify all the prerequisites are matching. fine, कुछ warnings हैं, delegation नहीं किया, 2019 सर्वर है, ये वो, ठीक है कोई बात नहीं. install. Okay, done. So it will take around 5 to 10 minutes. Let it complete. It will deploy domain services, everything, and configure the domain. And once the successfully configuration is done, यह खुद ही automatically reboot हो जाएगा सर्वर. ठीक है, I'll simply minimize this. I don't want to see. ये गायब हो जाएगा यहाँ से, तब देखेंगे. वो खुद ही configure हो जाएगा, अपने आप वो reboot हो जाएगा. ठीक है. Now let's go back to little discussion once again. Coming to Azure portal side, what is the first component?
उसके नीचे क्या रहेगा भाई, बोल दो। रिसोर्स ग्रुप। बिजनेस यूनिट 1, रिसोर्स ग्रुप 1, ओके, बिजनेस यूनिट 2, resource group 2, and so on. You can create multiple resource groups. Within the resource group क्या क्या रहेगा, infrastructure as a service, you can deploy it, right? So system admins रहते हैं, right, to manage your systems. Platform as a service, you can use it, right, these components, DBs. So DBA admins रहते हैं, and serverless compute components रहते हैं, ओके, एंड वो भी रहते हैं कंपनी में, राइट। इन सबको कंट्रोल देखने के लिए do you agree or not for these things? इससे पहले लिखेंगे इन सबको मैनेज करने के लिए डू यू एग्री और नॉट? ये हायरार्की समझ में आ रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, किसको कौन सा परमिशन कहाँ पे देना है, ये मुझे कहना था। सर समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे किसको देंगे परमिशन, सब्सक्रिप्शन लेवल पे किसको देंगे परमिशन, पोर्टल में किसको देंगे, ओनर और हेड, राइट। वहां पे ही विल कंट्रोल द ओरिजिनल पोर्टल, ओके। पोर्टल में फुल राइट्स इसके पास ही रहेगा। सब्सक्रिप्शन लेवल पे किसको रहेगा, बिलिंग एंड मटेरियल्स, उसके नीचे जो स्टाफ रहेगा वो क्या करता है, कितना बिल आ रहा है, कौन किसके कारण, एनालाइज करेगा, क्यों, कैसे मिनिमाइज करना है बिलिंग, हाउ टू ऑप्टिमाइज द बिलिंग, ये सारी चीज़ें सब्सक्रिप्शन वाले पे आते हैं ना। बिल भले नीचे कितने भी लोग काम करने दो, कितना डेवलपमेंट, कितना टेस्टिंग, प्रोडक्शन, जितने भी बिजनेस रन करने दो नीचे लेवल पे, बट सब्सक्रिप्शन लेवल पे आपको महीने में बिल आता है, राइट। सो बिल देखने का परमिशंस इस लेवल पे कंट्रोल होगा। डू यू एग्री विद दिस? हेलो, Yes, sir. okay, now I have one business unit. I'll create one resource group for that particular business unit, and inside the business unit you can deploy anything you want. Azure में 200 कंपोनेंट है, हर एक कंपोनेंट आप डिप्लॉय कर सकते हो रिसोर्स ग्रुप के अंदर, बट ये रिसोर्स ग्रुप का ओनरशिप एक बंदे को देंगे, भाई ये तेरा जिम्मेदारी है, इसके अंदर जो कुछ हो रहा है यू आर रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। नाउ हिज ड्यूटी इज मैनेजिंग ऑल दिस, भले इधर एक लीड रहेगा, इधर एक लीड रहेगा, इधर एक लीड रहेगा, वट एवर, डजंट मैटर, राइट। हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हायरार्की बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकल में, ऐसे नहीं कि ऐसे ही चलेगा, राइट। सो
10 एम्प्लॉई है, 3 एम्प्लॉई है, 15 लोग हैं, 3 लोग हैं 3 शिफ्ट में। बिल्डिंग टीम इधर कोई है ही नहीं, क्योंकि बिल्डिंग यहाँ पे मैनेज हो रहा है। क्लियर? सो इन 10 लोगों को एक ग्रुप बना सकता हूँ क्या मैं, यूजर ग्रुप एडी में? ये तीनों को एक ग्रुप बना सकता हूँ क्या? ये 15 लोगों को एक ग्रुप बना सकता हूँ ना? ये 3 लोगों को एक ग्रुप बना सकता हूँ ना? एक एक ग्रुप को स्पेसिफिक कंपोनेंट में मैं परमिशन देते जाऊंगा। कौन देगा ये परमिशंस? ही विल। इसको परमिशन कौन देगा? इधर से कोई तो देगा। इसको परमिशन कौन देगा? ये देगा। ये बंदा इधर नीचे एक मान लो ऑफशोर मैनेजर, ओके, और एक टीम है यहाँ पे, सेम स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी बड़ा स्ट्रक्चर रहेगा। इसको ये ओनर है इधर, एग्री और डिसएग्री? इफ यू लुक एट, सर्वर गायब हो गया यहाँ से, ये ओनर है, राइट? सो ये बंदा इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर जो जो रिसोर्सेस है वो सब देख सकता है और कंट्रोल कर सकते हैं, या डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और परमिशंस दे सकते हैं नीचे लोगों को। बट ही कैन नेवर सी यहाँ पे क्या चल रहा है, ही कैन नेवर सी कितना बिल आ रहा है। You got it what I'm saying? The level of controls in Azure using Active Directory. Now ये सारे चीजें एक रूफ में कैसे लेके आता है? How you will get everything under one roof? By using role PAC. based Yes. access control. ओके, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में क्या रहेगा? एज्योर में मान लो 200 प्लस रोल्स है बाय डिफॉल्ट। नो, इफ यू हैव अ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन इन एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, यू कैन क्रिएट योर ओन एज वेल, इसके अलावा। ओके, नाउ कौन सी रोल किस लेवल पे किसको देना है, दैट इज डिसाइडेड एंड डॉक्यूमेंटेड फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। Do you agree on it? Yeah. Okay, now इसका एक एडी ग्रुप रहेगा 1, इस लेवल पे एक एडी ग्रुप रहेगा 2, इस लेवल पे एक एडी ग्रुप रहेगा 3, इस लेवल पे एक एडी ग्रुप रहेगा 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन 10,000। मान लो 10,000 ग्रुप है फॉर 1 लाख एम्प्लॉय, और मे बी मेनी, आई डोंट नो, बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन साइज एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, कौन सी ग्रुप को कौन सा परमिशन कहाँ पे देना है, इट्स ऑल डिफाइंड एट रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, एंड रोल्स आर ऑलरेडी डिफाइंड इन एज्योर, groups are already defined in your on-premise Active Directory, and how you can give the permissions inside this table we'll see in some time. You got it what I'm saying? Yes, sir. So treat this as my account, it is already there, guarantee जो भी अकाउंट है मेरा लॉग्ड इन वो ऑलरेडी है, सो दिस इज आउट ऑफ स्कोप फॉर नाउ। यहाँ पे और कुछ कंपोनेंट्स को कैसे परमिशन देना है, दैट आई विल शो यू। डन, लेट्स डू इट। सो सर्वर इज रिफ्रेश, server is running, copy the IP, same IP, right? 82.0, fine. Now you have to log in with, if you give the same username and password, see, change हो गया, I told you, right? Yeah. Yes. Done. Done. Now you logged in.
How to check it? Note down ncpa.cpl. Sorry, dsa.msc, domain services. Okay, meanwhile, just open up this. ओके आ गया. नाउ यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाकर देखिए, दिस इज द सर्वर नेम, this is the fully qualified domain name, and this is the domain. Currently the machine is running on, right? How to check? This is the Active Directory services. This is my domain. Under this, if you have 1 lakh लैपटॉप्स कंप्यूटर्स, इसमें जाके आप एक ये बना सकते हो. इस यहाँ पे यू कैन क्रिएट न्यू शेयर्ड फोल्डर. ओके, the share folder, new folder. Okay, pnq, not the share folder. It's fine. Group. No, ग्रुप्स अलग है, वो नहीं. न्यू organization unit. Sorry, I completely forgot. Organization unit under computers, new नहीं है ना, ठीक है. रूट लेवल पे जाइए, यहाँ पे न्यू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट. ओके, पीएनक्यू पुणे. ओके, इसके नीचे न्यू कंप्यूटर, पीएनक्यू लैपटॉप 1, लैपटॉप पीएनक्यू अमित लैपटॉप डॉट इसमें अमित लैपटॉप 01 करके देता हूँ. ओके, सो कंप्यूटर इज क्रिएटेड. इसे 1 लाख कंप्यूटर रहेगा, या फ्लोर में 500 लोग हैं, 500 कंप्यूटर यहाँ पे एडेड रहेगा. ऐसे हर एक का लैपटॉप आईडी इस पे इधर दिखेगा. ओके, डेटा सेंटर में सर्वर्स है, इसके नीचे यहाँ पे और एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट करता हूँ. ओके, यूएसए अंडरस्कोर डीसी. इधर यूएसए में जितने भी सर्वर है वो सब यहाँ पे रहेगा. इसके अंदर आप यूजर्स भी बना सकते हो. यूजर्स, ओके, इसके अंदर इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कंप्यूटर्स, विंडोज सर्वर्स. ओके, विंडोज सर्वर सब उसमें ऐड करना पड़ता है. ऑर्गेनाइजेशन यूनिट लिनक्स सर्वर्स. ओके, उसके अंदर सर्वर आइलोस. आइलो पता है ना आपको? आइलोस क्या आइलोस पता नहीं. आइलोस मतलब एक सर्वर है, उसका मैनेजमेंट कंसोल रहेगा हर एक सर्वर का अलग से. वो सारे आइलोस इस पे अंदर कॉन्फ़िगर रहेगा. डेटा सेंटर में कौन कौन सा यूज़र है यहाँ पे रहेगा, और कितने विंडोज सर्वर है ये सब इसमें दिखेगा. लिनक्स सर्वर सारे इसमें दिखेगा. विंडोज लिनक्स या VMware स्टोरेज जो कुछ है वो सबको एक्सेस करने के रिमोट एक्सेस इस पे दिखेगा. ऐसा यू कैन क्रिएट आर्किटेक्चर लाइक दिस. दिस इज USA DC. PNQ, you can rename this.
okay, underscore office 201. You can create it like this. You can create organization units. Okay, AUS underscore office 2016 8 series under one डोमेन कंट्रोलर. ओके, नाउ डोमेन कंट्रोलर के अंदर जाओ, एक ही सर्वर दिख रहा है, माय फर्स्ट साइट नेम. इसके अंदर PNQ यूएस रहेगा तो यूएस सर्वर, सारे डोमेन कंट्रोलर्स इसके अंदर इधर ही दिखेगा. राइट, फाइन. नाउ यूजर्स में जाइए, दिस आर डिफॉल्ट ग्रुप्स एंड यूजर्स. एक ही यूजर है, डिफॉल्ट क्रिएट हुआ है, बिल्ट इन यूजर. नाउ आई नीड टू क्रिएट अ यूजर्स एंड ग्रुप्स. न्यू ग्रुप बिल्डिंग टीम. राइट, उसके बाद न्यू ग्रुप यूएस मैनेजमेंट ग्रुप offshore management group sys admins. Another group level 1 techs. Okay, ऐसे ग्रुप्स बनाया. Now I'll create users too. user 1. okay, monitor, इसको नेमिंग कन्वेंशन क्या दें, अमित. ओके, नाउ नेक्स्ट फिनिश. अमित करके यूजर बनाया and then user J. Fine, finish, and then user save. I'm just removing the password in next logon because I don't want to test anything. Let me create one more user. Okay, fine. Now 4 यूजर है, किसको, यूएस मैनेजमेंट. उसके अंदर जाके अमित का उस ग्रुप में डाल दो. सिस्टम एडमिन्स, श्रीनिवास को सिस्टम एडमिन ग्रुप में डाल दिया. और ऑफशोर बिल्डिंग टीम ओके, ऑफशोर मैनेजमेंट एड राइट एंड सो ऑन. जितने भी ग्रुप बनते रहेगा और यूजर्स ऐड होते रहेंगे और ये मॉडिफाई होते रहेगा हमेशा. राइट, दिस इज माई ऑन प्रीमाइस सेटअप. इमेजिन दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. मुझे ये यूजर्स ग्रुप्स ये सारे यहाँ पे बार बार मैन्युअली नहीं क्रिएट करना है. कहाँ पे, एज्योर में आके यहाँ पे मेरा स्टार्टअप नहीं है हमेशा ये सब चीज़ें मैन्युअली इधर करते बैठने के लिए. सो एक बार एम्प्लॉय ऑनबोर्ड हो गया,
यहाँ पे भी हम मैन्युअली क्रिएट नहीं करेंगे एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग टाइम पे। कुछ तो कंपनी का एक पोर्टल रहेगा, मैनेजर उसमें जाके मैनेजर रिक्वेस्ट सबमिट करेगा, हिज ऑनबोर्डिंग डिटेल्स, दिस इज द नेम, फुल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड एज पर कंपनी स्टैंडर्ड दिस इज द यूजर नेम आई एम रिक्वेस्टिंग, सबमिट, ओके। Then after like 1 day or within a 24 hours, manager will get an email saying user has been created, this is the username and this is the temporary password, and mailbox also created, Skype account has been created, a SharePoint access has been given, and user is added into offshore management team group or offshore admin team group, whatever the requested टेम्पलेट रहेगा ना मैनेजर सबमिट करते वक्त रिक्वेस्ट। सो वो सारे चीज़ें बैकएंड में क्रिएट हो जाएगा अपने आप, एंड मैनेजर विल गेट द ईमेल बाय द एंड ऑफ द डे एंड ही विल शेयर विद द न्यू एम्प्लॉय। यही चीज होता है ना बैकएंड में। Yeah. ओके, नाउ एज्योर के अंदर भी मुझे वो यूजर को बार बार मैन्युअली नहीं क्रिएट करना, एक बार ऑन प्रीमाइज में क्रिएट हो गया वही यूजर एज्योर पोर्टल में भी मुझे दिखना चाहिए। उसके लिए मुझे इंटीग्रेशन का जरूरत है। ये पिक्चर के हिसाब से, कौन सी पिक्चर है ये, नहीं, डायरेक्टरी कनेक्ट, यस, ये पिक्चर के हिसाब से एडी कनेक्ट का जरूरत है टू इंटीग्रेट माई ऑन प्रीमाइज और एज्योर एडी विथ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कंपोनेंट एक्टिव डायरेक्टरी। ओके, ये कैसे करना है वो देखते हैं। नाउ लेट्स गो टू सर्वर, ओपन गूगल। इससे पहले सर्वर मैनेजर, लोकल सर्वर, వన్ సెకండ్, హలో, క్లాస్లో ఉన్నానండి ఇంకా అవ్వలేదు, అయిపోయినా చేస్తానా, ఇంకో గంట। सेटिंग्स ऑफ, डन। उसके बाद आई सेटिंग्स, ओके, डन। गूगल क्या इतना स्लो चल रहा है, फाइन। अरे यार, पहले क्लोज कर दो इसको भी क्लोज कर रहा हूँ, हो गया ना यूजर्स क्रिएशन। एकदम लंबा क्लास है, थोड़ा बोरिंग भी रहेगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा, आप कॉन्सेंट्रेट कर लो प्लीज। ओके, इसमें एज्योर एडी कनेक्ट डाउनलोड एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्टर, यही है। ओके, डाउनलोड कर दो, सेव इट। क्यों सेव इट, कंप्लीट, ओके, डाउनलोडेड, क्लोज। लेट्स सी डाउनलोड्स, देखो पार्शियली सेव हुआ, पहले नहीं हुआ था, फाइन। इंस्टॉल एडी कनेक्ट क्या है, ब्रिज बिटवीन योर ऑन प्रीमाइस एंड एज्योर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये दोनों को कनेक्ट करके सिंक करने के लिए काम करेगा। वो सिंक कैसे करेगा, ये खुद ही एक डेटाबेस बना के बैठेगा, जहाँ पे ऑन प्रीमाइज में जो भी चेंजेस होगा पहले इसके पास रखेगा और वो भी उधर सिंक करेगा एक्टिव डायरेक्टरी एज्योर में जाके। ओके, अगर कोई यूजर डिलीट हो गया कहाँ पे, ऑन प्रीमाइज में, सो उसको सिंक करके और एज्योर में भी वो यूजर को डिलीट कर देगा, या यूजर का पासवर्ड एक्सपायर हो गया ऑन प्रीमाइज एक्टिव डायरेक्टरी में, कनेक्टर क्या करेगा, उस कनेक्टर एक्टिव डायरेक्टरी सिंक करेगा विथ पोर्टल में एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी की जो सर्विस है उधर वो यूजर का पासवर्ड सिंक करके रखेगा। क्लोज इट। नाउ हैज बीन इंस्टॉल्ड and ready to configure. I'll say yes, I agree, continue. Manual settings you can do it, no, I'll say express settings, configure synchronization identities for the current AD forest, automatically detect किया है, fine. User express settings,
नाउ कनेक्ट विथ एज्योर एडी, ये बोल रहा है कि एज्योर एडी में कनेक्ट कर दो। कैसे कनेक्ट करना है? तो पहले इधर एक मैन्युअली एक यूज़र बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। ओके, हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स इन द डायरेक्टरी। ये यूज़र के क्या काम है? सिंक करने का काम ही करेगा, बाकी कुछ काम नहीं करेगा। काइंड ऑफ सर्विस अकाउंट। ओके, कहाँ पे? एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में। गो टू एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, यूजर्स नहीं है, सो न्यू यूजर, क्रिएट ए यूजर, नहीं, इस डोमेन में, यस इस डोमेन में। सर्विस SVC, सर्विस अकाउंट अंडरस्कोर सिंक और एडी सिंक और ग्रैंड, कुछ याद रख, कुछ तो होना चाहिए ना मीनिंगफुल। सो Azure AD sync, Azure AD sync. Let me create my own password. Welcome @123. ओके, ना इसका जॉब रोल वगैरह कुछ नहीं है, जस्ट क्रिएट द यूजर। क्या है? एज्योर करके आया इधर यूजर, SVC अकाउंट अंडरस्कोर AD सिंक सो एंड सो। ये इसका, ये देखो डिफरेंस, दिस इज एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर। इसको कुछ तो परमिशन देना चाहिए, सिर्फ यूजर ही क्रिएट किया, हमें कुछ रोल असाइन नहीं किया, क्योंकि यूजर को पोर्टल में कुछ करना है तो कोई तो परमिशन चाहिए ना, रोल बेस्ड एक्सेस के हिसाब से। सो ऐड रोल्स, ओके, जस्ट ऐड अ रोल असाइन, ऐड असाइनमेंट्स। कौन सी रोल असाइन करना है इसको? ग्लोबल करके सर्च करो। एडमिनिस्ट्रेटर कैन मैनेज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एज्योर एडी एंड माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज दैट यूज एडी आइडेंटिटीज, ये उसको देना पड़ेगा। डन। डन। नाउ अगर नहीं है, लेट मी डिलीट इट। अगर नहीं दिया तो वो भी मुझे एरर देना पड़ेगा ना, रिमूव असाइनमेंट्स। राइट, सो यूजर है कौन सा? SVC अकाउंट अंडरस्कोर AD sync at .co.in, welcome @123. पासवर्ड इज एक्सपायर्ड, अपडेट द पासवर्ड एंड ट्राई अगेन। मैंने जो उधर पासवर्ड सेट किया तो पहले ही बार लॉगिन करके चेंज करना पड़ेगा। मुझे क्या करना है, वापस दूसरा ब्राउजर में जाओ, साइन इन विथ डिफरेंट यूजर, और यूजर नाम भी याद रखना बहुत मुश्किल है। लेट मी साइन आउट एंड फॉरगेट, साइन आउट एंड फॉरगेट, इन सबको याद रख के क्या करेंगे? forget forget forget। नाउ क्या था? SVC अकाउंट अंडरस्कोर AD sync at, ये पूरा देना पड़ेगा। ओके, राइट। अगर वैसा कुछ यूजर ही नहीं है तो इट विल ऑटोमेटिकली गिव एरर, वहां पे एरर दे देगा। 123, मुझे पासवर्ड चेंज करने के लिए पूछना चाहिए। यस, राइट, आई विल चेंज पासवर्ड। डन। सो लॉगिन तो हो गया, बट वो कुछ नहीं कर सकता है लॉगिन करके, क्योंकि उसको कुछ परमिशन ही दिया नहीं ना अभी तक में, मे बी लेटर। ठीक है, लॉगिन हो गया। सी, नो सच डायरेक्टरी नथिंग, डिफॉल्ट डायरेक्टरी पे लॉगिन हो गया। एज्योर इज द यूजर नेम।
Okay, now minimize, come to remote, next go back, use express settings, svc account underscore ad sync at change the password. No, ये देखो, प्लीज प्रोवाइड द एज्योर एडी क्रेडेंशियल्स ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर. ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर जिसको है परमिशन वही यूजर इसको दे दे बाबा इधर. नाउ गो बैक, एड असाइनमेंट. ओके, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर इसको ही परमिशन दे दिया. नाउ अगेन प्रीवियस एक्सप्रेस सेटिंग्स svc account underscore ad sync at देख अभी ले लिया. Thus it is successfully connected to Azure Active Directory in my portal. Now इस ये भी जो भी सर्वर है ये भी ऑन प्रीमाइस सर्वर है मान लो. यहाँ पे भी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को एक्सेस करना है तो इधर भी एक यूजर चाहिए. dsa.msc में यहाँ पे भी कोई तो एक यूजर चाहिए ताकि वो एडी कनेक्ट इसके साथ कनेक्ट करके इधर जितने भी यूजर्स है, कहाँ पे यूजर्स है, ये सारे यूजर्स को उधर सिंक करने के लिए इन सब के अंदर कोई तो एक यूजर चाहिए, इसको भी विथ हाईएस्ट परमिशंस. सो क्या करेंगे, पहले एक यूज जो ग्लोबल एडमिन है वो नहीं कर सकता क्या सीन? यस, क्योंकि सारे यूजर्स का जो चेंजेस है वो कलेक्ट करके मॉडिफाई करना है. मतलब इन शॉर्ट बैकएंड में आप जो भी मॉडिफाई कर रहे हो पासवर्ड मुझे पिक करके उधर सिंक करना है. तो मुझे तो आपका यूजर का जो डेटा है वो एक्सेस करने का परमिशन होना चाहिए. देन दैट शुड बी एलिवेटेड एक्सेस, राइट? बट every password is in encrypted form. I cannot read the password, I cannot read the changes. अब क्या कर रहा हूँ मुझे कुछ पता नहीं, जस्ट मुझे हाईएस्ट परमिशन चाहिए वो ऑब्जेक्ट्स रीड करके उधर भेजने के लिए. नहीं, मेरा क्वेश्चन था, आपने अभी एक ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल क्रिएट करके कनेक्ट किया है ना, तो वही यूजर नहीं कर सकता क्या? बोलो दोनों काम. नहीं, दोनों काम नहीं है, समझो. एक मिनट, सॉरी, ये अलग है, ये दुनिया अलग है. ये दुनिया में ये बंदा रेस्पॉन्सिबल है, ये दुनिया अलग है, राइट? इमेजिन दिस इज शिवसेना, दिस इज एनसीपी. इन दोनों को कैसे जोड़ोगे? Azure एडी कनेक्ट यूज करके हमने ज्वाइन किया है. हाँ, इधर भी कोई तो मेंबर चाहिए, इधर भी कोई तो मेंबर चाहिए, मीडिएटर्स. ठीक है, यहाँ पे जो सबको संभाले, यहाँ सबको संभाले. गॉट इट? ये एडी कनेक्ट जो है ये मीडियम है बस. पहले यहाँ एक बंदे को उठाया मैंने, भाई ये तेरा काम है. इधर भी एक बंदे को मुझे इलेक्ट करना है, भाई तू ये काम कर ले. तो इस बंदे को अभी क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे. समझा? क्लियर? So another user on-prem sync, on-prem sync user. Got it? Yeah. No, फिनिश. इसको भी परमिशन चाहिए ना? क्या क्या परमिशन चाहिए? एंटरप्राइज एडमिन्स में ऐड कर देंगे इस यूजर को. ओके, ऑन प्राइम सिंक. नाउ
डोमेन एडमिन्स में भी ऐड करेंगे। ओके डन। नाउ go to Azure Active on-prem sync at same domain। ओके अभी ये तो दे रहा हो, इसका इंटीग्रिटी कैसे चेक करेगा? हाँ सच में ये डोमेन है क्या नहीं, वेरीफाई किया क्या नहीं, क्योंकि नाउ मेरा ऑन प्रीमाइज है वो आइसोलेटेड है, इंटरनेट पे कभी गया नहीं ऑन प्रीमाइज वाला। नाउ एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, इंटरनेट पे चल रहा है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, कस्टम डोमेन्स में जाके, कहाँ पे है भाई कस्टम डोमेन्स, या कस्टम डोमेन्स में जाके वेरीफाई किया हो, राइट, verified। So if I am trying to connect my on premise, वो वेरिफिकेशन री वेरीफाई होता है, बराबर है क्या नहीं, सच में है क्या नहीं। अगर नहीं है तो फोकट में यूज़ कर रहे हो ये डोमेन, दुनिया में और कोई यूज़ नहीं कर सकता है, पेटेंट्स किसी के नाम पे है, राइट। सो नेक्स्ट, नाउ इट इज़ कनेक्टेड। ओके, स्टार्ट सिंक्रनाइजिंग, इंस्टॉल। ये क्या कर रहा है, इट इज़ नाउ क्रिएटिंग खुद का कुछ डेटाबेस बना के रख रहा है, ताकि इधर से उधर कुछ डेटा सिंक करना है, पहले इसको तो जानना चाहिए एडी कनेक्ट को, हाँ मैं क्या कर रहा हूँ। वो खुद को इंटीग्रेशन के लिए वो खुद ही एक डेटाबेस बना रहा है विद इन द सर्वर इटसेल्फ। Now creating a synchronization service, let's wait for 1 or 2 minutes। ओके सो यहाँ पे ग्रुप्स में देखो, दिस आर द डिफरेंट यूएस मैनेजमेंट, ये सब दूसरा क्लास में जब बताया था तब है, ये इग्नोर कर दो। और यहाँ पे यूजर्स में भी आपका नाम नहीं रहेगा, अमित जय या सैफ, मेरा नाम कहीं तो रहेगा। सो ये सारे देखो एक ही षटगुनिया, दो षटगुनिया, बाकी सब कुछ तो अजीब ही नाम है, राइट। इग्नोर ऑल दीज थिंग्स। अभी वापस सिंक होने के बाद हमारा जो ऑन प्रीमाइज वाला जो यूजर्स है @chatgunia.co.in, यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए, यहाँ पे यूजर्स आना चाहिए, यहाँ पे ग्रुप्स आना चाहिए। क्लियर? यहाँ पे ये ग्रुप्स जो है ये ऑब्जेक्ट आईडीज, इग्नोर देम। ओके, आई विल गेट सम न्यू एंड दे आल्सो हैव राइट ऑब्जेक्ट आईडीज, नया कुछ ऑब्जेक्ट आईडीज आएगा यहाँ पे, देखते हैं। नाउ यू विल सी कॉन्फ़िगर सो एंड सो, उसके साथ कनेक्ट कर रहा है मेरा Azure Active Directory। अपडेटिंग सिंक्रनाइजिंग रोल्स, कॉन्फ़िगर अभी डोमेन अपडेटिंग सिंक्रनाइजिंग रूल्स फॉर दिस पर्टिकुलर डोमेन, राइट। Fine, just wait for a few more minutes। Now done। Okay, so exit हो गया, सिंकिंग इज डन। नाउ यहाँ पे आके जस्ट रिफ्रेश इट, यू विल सी सम मोर एंट्रीज, थोड़ा टाइम लगेगा, वेट फॉर सम टाइम। अमित, ये नहीं सॉरी, जस्ट रिफ्रेश।
इतना टाइम लग रहा है। ये देखिए आ गया होगा। अमित आया। Yeah. अमित, Yes. जय Yeah. एंड Yeah. सैफ Yeah. एंड श्रीनिवास। इवन ऑन प्रीमाइज भी आएगा ना, ऑन प्रीमाइज डायरेक्ट। वही उधर का ही इधर आएगा, उधर का इधर सिंक होना चाहिए ना। यहाँ पे मैन्युअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है एजूर में। वहाँ पे जो भी यूजर है अपने आप इधर सिंक करना चाहिए, वही अपना एम है। यहाँ पे भी देखो डायरेक्टरीज अपने आप आ जाएगा। ऑफशोर मैनेजमेंट दो दो आया। ओके, पुराना क्लास वाला एक एंट्री है, आपका एक एंट्री वैसा। सिस एडमिन्स, बिल्डिंग टीम, ऐसे बहुत सारे। नाउ हाउ टू असाइन रोल्स। यूजर्स तो आ गए, तो अभी रोल्स कैसे असाइन करना है। अभी रोल्स कैसे असाइन करना है, गो टू कॉस्ट एंड बिलिंग। यहाँ पे बिलिंग टीम में किसको दिया मैंने, बिलिंग टीम इज कैपिटल बिलिंग टीम, याद रखो कैपिटल बिलिंग टीम। और किसको, जय को बिलिंग टीम का एक्सेस दिया। सो बिलिंग कौन देख सकता है, पे एज यू गो में जाइए, IAM रोल, ऐड रोल असाइनमेंट। यहाँ पे कॉस्ट मैनेजमेंट कंट्रीब्यूटर, कॉस्ट मैनेजमेंट कंट्रीब्यूटर वो क्या काम करेगा उसको ही पता है, राइट। मुझे तो पता नहीं वो एग्जैक्टली क्या करता है। यहाँ पे बिल्डिंग टीम, दो बिल्डिंग टीम आया, पुराना जो क्लास का वो छोड़ दो, नीचे और एक आया कैपिटल में, ये सेलेक्ट कर दो। इस ग्रुप को दे रहा हूँ, इस ग्रुप में 10 लोग हैं, वो 10 लोग लॉग इन करेगा तो उनको एक ही परमिशन मिलेगा, बिल्डिंग मैनेजमेंट कंट्रीब्यूटर। सेव इट, कहाँ पे दिया हो, सब्सक्रिप्शन लेवल पे। गो टू माई पिक्चर, अनदर पिक्चर आई हैव ड्रॉन, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेवल पे दिस वन, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड, दिस वन बिलिंग टीम का। बिलिंग टीम करके आईडी ग्रुप है, और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में एक रोल मिला है मुझे, जिसको मैं ये लेवल पे एक्सेस दिया हूँ। ओके, नाउ कम टू हियर, जस्ट स्विच यूजर। ओके, नाउ एट राइट, ले लिया। अगर यूजर नहीं रहता है तो इट वोंट एक्सेप्ट, चाहते वी कैन ट्राई इट आउट। J1 नहीं, नो सच यूजर। ओके, क्या पासवर्ड रखा मैंने, रीसेट। फोर JMM, राइट, नहीं है क्योंकि उसके अलग से लाइसेंस लगेगा। वो साइड में रख दो, वो अगर रीसेट करना है तो वो मेल बॉक्स में जाएगा, वो मेल बॉक्स है ही नहीं, हमने मेल बॉक्स क्रिएट ही नहीं किया ना। Correct. ओके, Yeah. so that's a different story. Now what is the password I set, यहाँ पे जय, where is Mr. जय, इसको पासवर्ड, reset password, no, Okay. unlock user,
right? So sync service, sync service. ओके, सिंक सर्विस को एक बार वापस अपडेट कर रहा हूँ ताकि पासवर्ड उधर अपडेट हो जाएगा. क्लोज, कैंसिल, ओके, क्लोज, रन. फुल सिंक्रोनाइजेशन रन कर दो. रनिंग, एक बार पूरा सिंक कर दो. ओके, नाउ लेट्स ट्राई वंस अगेन. अगर ये देखिए, साइन आउट, डॉट इन, नहीं हो रहा. ठीक है, और किसी का ट्राई करते हैं. और किसी का नहीं हुआ, देन देयर इज सम इश्यू इन सिंकिंग. कभी कभी नहीं. हाँ, किसी का नहीं हो रहा. दैट मीन्स पासवर्ड सिंक नहीं हुआ. सिंकिंग इश्यू है. सिंकिंग इश्यू. एक अपडेट हुआ, अनचेंज्ड, बराबर है. फिर क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? Let me close this out. Go to IAM, Azure Active Directory, and the difficult part is for those users you cannot reset the password from here. Let's say Jay, right? Reset the password. Unfortunately the current licensing does not allow you to reset password here. Okay, so जो भी है वहाँ पे ही reset करना पड़ेगा. तो यहाँ से यूजर डिलीट किया तो फिर और एक बार सिंक होगा ना तब? नहीं, यहाँ पे डिलीट भी नहीं होगा यूजर. देखो, डिलीट भी डिसेबल्ड है. जो भी है वहाँ पे, इफ आई डिलीट द यूजर, कहाँ पे? ऑन प्रेमाइज में डिलीट करेंगे, यहाँ पे भी डिलीट होना चाहिए. किसी का तो यूजर डिलीट करेंगे. रुक, सो श्रीनिवास को डिलीट कर देता हूँ. डिलीट यूजर, डन. नाउ रन delta synchronization. Just see. कंप्लीट. जय का अभी अपडेट हुआ. Yeah, retrieved one. Okay, so run full synchronization. Let's see. इतना ही है ना श्रीनिवास? अभी अपडेट हुआ, ठीक है. नाउ
यहाँ पे आके वो यूज़र थोड़ी देर के बाद वो डिलीट होना चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा सिंकिंग में, बट वो ओके डिलीट होना चाहिए। ये यूज़र थोड़ी देर के बाद गायब हो जाएगा। बट या लेट्स ट्राई। वो लॉगिन भी होना चाहिए, मुझे पता नहीं क्यों लॉगिन नहीं हो रहा है। और इससे पहले भी मैंने क्लास लिया था नो सिंक्रोनाइजेशन इशू, बट उसमें क्या है मल्टीपल एंट्रीज आया था, डुप्लीकेट एंट्रीज, उसके कारण शायद नहीं हो रहा होगा। ओके .co.in समझा। नहीं हो रहा। ठीक, लेट मी डू id connect, सस्पेंडेड बोल रहे हैं उसको। configure custom synchronization options, okay, right, next, sync all domains and OUs, next, पास next, yes, yes, all the attributes का जरूरत नहीं। let me see if it will sync or not, okay, यदि enable पासवर्ड पासवर्ड राइट बैक इज, वहां से अगर लाइसेंस है उधर चेंज किया तो इधर राइट बैक करेगा पासवर्ड। ओके मे बी मल्टीपल ओएस क्रिएट किया हो अननेसेसरली, उसके कारण कुछ कंफ्लिक्ट हुआ होगा, बट दैट्स ओके, we have tested only the login part is missing. I hope that will also work. So ideally once login is complete, Jay should see only billing option, देखो right? जो आपने देखिए दिया हो है। गया हो गया हो गया, सिंकिंग का इशू है, देखो अभी लॉगिन हो गया जेई, ओके, एंड he can go and check the billing part. सब्सक्रिप्शन का है नहीं, he can only do कॉस्ट मैनेजमेंट, डैशबोर्ड्स वगैरह क्रिएट कर सकता है, किसको कितना कॉस्टिंग है क्या है उतना ही कर पाएगा, ओके। ओके अगर जाके इसको ये करेंगे, भाई एक रिसोर्स ग्रुप है उसको, सॉरी एक वीनेट है या रिसोर्स ग्रुप ही क्रिएट करते हैं, राइट, बहुत सारे रिसोर्स ग्रुप है ना, एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट straight away he should get the error, देखो you do not have a permission to create a resource group, okay। now what I will do, I will add one more user, इसको साइन आउट कर लेते हैं, यहाँ पे साइन आउट, सॉरी लीव, सो यहाँ पे कहीं पे गो टू, यहाँ पे रिफ्रेश, वो यूज़र श्रीनिवास चला गया क्या, वो देखो श्रीनिवास आई क्या यहाँ पे, नहीं श्रीनिवास चला गया, देखिए अभी, हाँ शायद वो नहीं है। हाँ he's gone। he's gone, so थोड़ा टाइम लगेगा उसको डिलीट होने में, बट या साइफ को ये परमिशन देंगे रिसोर्स ग्रुप लेवल पे, इस रिसोर्स ग्रुप लेवल पे साइफ को फुल परमिशन देता हूँ, he is the owner of this resource group, let's say for example he can do anything,
बट दूसरा रिसोर्स ग्रुप दिखेगा ही नहीं. ओनर, okay, rather than group I'll say individual user. Safe. डन. रोल असाइनमेंट्स नीचे आके देखिए, बहुत सारे मैंने क्रिएट किया था पुराना. अमित को भी दिया था. ही इज रीडर एट दिस रिसोर्स लेवल. साइफ ओनर एट दिस रिसोर्स लेवल. ओके. बिलिंग टीम को भी दिया था, बट इनहेरिटेड फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ही कैन डू ओनली दिस टास्क. सो ऐसे बहुत सारे यूएस मैनेजमेंट पुराना, मतलब लास्ट क्लास में जब एसन किया होगा ये. दैट्स ओके. नाउ व्हाट आई शुड डू, साइफ के साथ लॉग इन करना है. यहाँ पे देखिए कितने रिसोर्स ग्रुप है. सॉरी, कितने रिसोर्स ग्रुप है. पहले मैं, मेरा फुल एक्सेस है ना. गो टू रिसोर्स ग्रुप्स. 1 2 3 4 5 6 रिसोर्स ग्रुप्स. ओके, यहाँ पे आके देखिए सेफ एट .in. लॉगिन हो गया. उसको सब दिखना चाहिए जो हमारा नहीं है. और रिसोर्स ग्रुप लेवल, एक ही रिसोर्स ग्रुप लेवल पे फुल एक्सेस दिया. ओनरशिप एक रिसोर्स ग्रुप लेवल पे दिया, बाकी किसी रिसोर्स का ग्रुप दिखना नहीं. रिसोर्स ग्रुप्स, उसके अंदर दूसरा बिजनेस यूनिट का कुछ बिजनेस चल रहा है, वो आपको दिखेगा ही नहीं है. यहाँ पे ये देखिए एक ही दिख रहा है. बट आप एजर पोर्टल में जाके हर एक कंपोनेंट में जाके जो कुछ चाहिए सब कुछ डिप्लॉय कर सकते हो, बट ओनली अंडर दिस रिसोर्स ग्रुप. और बिलिंग में जाके वो बिलिंग देख ही नहीं सकते हो कितना बिल है, क्योंकि द बिल इज बेस्ड ऑन 10 रिसोर्स ग्रुप, 10 बिजनेस यूनिट्स, 10 मैनेजर्स और 10 individual companies. But at parent level company you cannot see what the bill is. See, you don't have access in billing. But you cannot create any resource group. Also, you cannot create any, even though if you are owner at this level, उसके ऊपर लेवल पे जाके आप रिसोर्स ग्रुप बना नहीं सकते हो. ओके. देखो, यू डोंट हैव परमिशन. बट इस रिसोर्स ग्रुप पे अंदर जाके यू कैन क्रिएट अ वीनेट, यू कैन क्रिएट अ सबनेट, यू कैन क्रिएट अ डेटाबेस, यू कैन क्रिएट एवरीथिंग. ओके. द पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप व्हाटएवर. या इसके अंदर आपका खेल है. बाकी और 2-3 रिसोर्स ग्रुप है, आपको दिखेगा भी नहीं उधर क्या बिजनेस चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसको क्या एक्सेस है, कौन डिप्लॉय कर रहा है, कौन रिमूव कर रहा है. वो सारे चीज़ें आपको कुछ लेना देना नहीं. इफ़ यू वांट यू कैन गो टू योर मैनेजमेंट वीनेट, बिकॉज यू आर ओनर फॉर दिस रिसोर्स ग्रुप. उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट है आप मैनेज कर सकते हो, नो डाउट. सबनेट, ऐड वन मोर सबनेट. Subnet 2. Okay. Done. Successfully added because you have a permission. समझ में आया या कुछ भी समझ में नहीं आया? समझ में आया. Understood. Okay, so I hope I covered what I have written here. Get user assign roles and permission. Yeah. Yes. Yes. इतना लंबा स्टेप्स इसलिए बोला कि वीकेंड में करते हैं. आज मॉर्निंग में भी सेम सेशन फॉर अदर. Okay. Okay, can I stop here or you have any questions? I'll save ये तो this. क्वेश्चन. हाँ, समझ में आया प्रोसीजर क्या है, कैसे क्या. या. Yeah. नवंबर बेस्ट ये है ना आपका, यही है ना आपके अंदर जो फाइल्स है. एडी. ओके, वहाँ पे सेव कर दिया स्टेप्स इन केस इफ यू गाइस वांट टू रेफर समथिंग. लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट. 2 hours 30 minutes. और मैंने बहुत सारे चीज़ें इन द सेंस एक एक पॉइंट पे अगर हम जाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू क्लोज दिस आउट